Dr. Anil Singh, he is he's the uh, president emeritus of BITSANA, BIT Sindri North America Alumni Association. And also, he is, it's a Bitsana which is kind of given a big support. Actually, Bitsana is the one who supported this entrepreneurship program right from day one, since 2017. So it has been 2017, now it is 2026. It's almost coming to a decade that since Bitsana got involved, and to Bitsana's credit, of course, the entrepreneurship is now in BIT Sindri. It is bubbling, and at Jharkhand University, it is also bubbling. So, Excuse me, sir. Prashant Gandhi sir has joined. oh, thank you so much. Thank you so much. So it is please make Professor Prashant, make him a. I have already made him go, sir. Okay. All right. Okay. Good. Good. Okay. So let me just finish. So, Professor, so Mr. Dr. Anil Singh is the one who's here. Him and Bitsana has been the one who have really made it, made brought this program, entrepreneurship program, with their support to this level. Professor Anil Singh, Dr. Anil Singh, if you can unmute yourself and just express few. Uh, uh, just take a minute or so, please. Professor Alam, if you can please unmute. Yes, I did. Professor Anil Singh, go ahead, please. Well, thanks, Ramesh Bhai. It's always a pleasure to see you and so many students and faculty joining this entrepreneurship program that you have started so well. I think it's taken almost 8 years so far to bring it to this level, and I have attended a few of the sessions, and it has been very illuminating. And I'm hopeful that pretty soon some of your students will will become a big star, and who knows, maybe bring name like Prashant Gandhi and Adani, and who knows. And I wish them all, and I'm looking forward to hearing a talk from Prasad Gandhi, and very illuminating career, and I look forward to his talk. Thank you, Ramesh. Thank you so much. Okay, with that, I really want to just recognize some of the what made this program. And there are few individuals who really kind of have been with this program for a long time. And I do want to recognize, like, Professor Mahmood Alam, who has been a key supporter of this program. Then Professor Suresh Roy, he has been there from almost like day one on this one, just going in. Professor Rajan Jaswa, he's the one who said, Ramesh, yes, I'm going to help out and we'll make sure. He's my guru. So that's how it started. And then, of course, we had Professor Murli Manohar. He is the Professor Prakash Kumar from RSV College, Professor Deepak Kumar, and then Professor Waris Imam from Al Kabir, Dr. Prakash Kumar, HOD, Production and Industrial Engineering from BIT Sindri. He is the heartbeat of this of entrepreneurship. He's the one who kind of has been putting over the last 10 years his effort and making sure all the logistics and everything works. So thank you, Dr. Prakash Kumar. And then we have, of course, Honorable Vice Chancellor Dr. D.K. Singh. His vision was, he started that he wants to promote the entrepreneurship all across the state of Jharkhand. Every institute of Jharkhand University will be bubbling with this startup energy. Then we have Professor Snake Kumar, who is the higher education curriculum director.
He is a big support. I couldn't have done without him. Professor Tiwari from RSV College, Professor Jaruhar from GGS, and Dr. Pankaj Rai from BIT Sindri. Thank you so much with that. And now I really welcome Mr. Prashant Gandhi. Thank you so much, Mr. Prashant Gandhi. I know, I remember the telephone call which we had, and thanks to Mr. Gopal Shah who facilitated that call, and how quickly how you agreed to talk to the students of Jharkhand and share that knowledge. Now, Mr. Prashant Gandhi, he has been in business for 27 years now, and his life mission to produce functionally better import substitute and export globally in partnership with his classmate. See the teamwork here. See the teamwork. The empathetic leadership. So that's what he did, and then he became a major supplier to the to the ISRO. Whether it's BrahMos, whether it's other device, whether it's Chandrayaan, he has been quite active in supplying the parts. His product is now going to more than 33 countries, and his he has over 15 patents, and of course his area of expertise are lean management, which we talked in our last class, lean management, research and development, innovation and strategy formulation. He has won various awards. If I list, it's going to take about half hour to list all those awards. But he's very devoted with the commitment to work with the students to make sure that they become the leader of tomorrow in the development this Atmanirbhar Bharat. With that, I invite Mr. Prashant Gandhi. Thank you so much. We truly appreciate that. And please, you can take over and you can share your screen. नमस्कार सर। नमस्कार। और मैं एक्सप्रेस करना चाहूँगा कि मुझे ये जो मौका दिया गया है इतने दूर बैठे-बैठे इंटरेक्ट करने का, उसके लिए मैं गोपाल सर का भी आभारी हूँ, रमेश सर का भी आभारी हूँ। और सर ने जब बात छेड़ी है इसरो की, तो मैं उस स्टोरी से मेरी बात का आरंभ करना चाहूँगा। नो डाउट मैं जो अभी 40-45 मिनट की बात करूँगा उसमें कुछ स्टोरीज, कुछ कंसेप्ट्स, कुछ प्रैक्टिसेस, कुछ पॉजिटिव कल्चर की तरफ ये सब चीज़ कैसे बढ़े, और सिस्टम, स्ट्रेटेजीज एंड कंट्रीब्यूशन फॉर सोसाइटी, इतने चीज़ों को मैं कवर करना की कोशिश करूँगा। बट इसरो से बात शुरू करूँ तो 2003 में एक बार हमारे पे टेलीफोन आया कि भैया हमें कुछ ट्यूब चाहिए एल्यूमिनियम के, और हम लोग कई जगह जा चुके हैं एंड कंट्री नीड्स इट, क्योंकि हमारे आदरणीय प्राइम मिनिस्टर वाजपेयी जी ने उस टाइम पे बहुत बड़ा निर्णय लेके पोखरण में एक एक्सपेरिमेंट जो किया था एटॉमिक एक्सप्लोजन रिलेटेड, तो बहुत से कंट्रीज ने हमारे पे एम्बार्गो डाला था कि भारत अभी अणुशक्ति बन जाएगा। तो मैं तो समझा नहीं था कि मुझे क्या करना है। रेफरेंस पूछा तो बोले हिंदाल्को ने, प्रेसिडेंट ने बोला है कि ये 2 लड़के हैं अहमदाबाद में, वहां चले जाओ। वो फ्लाइट में ट्यूब लेके आए और मैंने बोला सर आपका कोई विजिटिंग कार्ड? बोले नहीं है। मैंने बोला सर आपका कोई आई कार्ड है? बोले आई कार्ड भी नहीं है मेरे पास। मैंने बोला ठीक है, आप तो सरकार से आए हो, इसरो अगर ये हमें मौका दे रहा है कुछ करना है, तो भले हमें कुछ भी आता नहीं है, हमें कुछ भी पता नहीं है, बट हम लोग ये काम करेंगे।
तो विदाउट एनी ऑर्डर इन हैंड, विदाउट एनी प्राइसिंग डिसाइडेड फॉर द वर्क, वी वर्क फॉर अबाउट 7 days, डे एंड नाइट। हमारे लोगों का डेडिकेशन इतना है, जो हम लोग, हमारे साथ जो लोग हैं उनको कर्मयोगी कहते हैं रियल में, कि करीब 7 दिन में उनकी जो ट्यूब हमें कोल्ड ड्रॉ करनी थी वो भगवान की कृपा से बन गई। बनने के बाद उन्होंने बोला डॉक्यूमेंट में भी आप कुछ नहीं लिखोगे, और वो नेक्स्ट फ्लाइट में ये सब चीज लेके चले गए। फिर वहां से फोन आया कि भैया इसका पैसा। मैंने बोला सर आपने ये जो मौका दिया है नेशन के लिए, इससे बड़ी चीज क्या हो सकती है। तो फिर 1 साल के बाद उनके डायरेक्टर का फैक्स आया, 2003 में फैक्स ज्यादा चलते थे, कि भैया हम लोग फर्स्ट जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जो हमारा है वो लॉन्च करने जा रहे हैं, और प्री लॉन्च सेरेमनी में हम आपको इनवाइट करना चाहते हैं। श्री हरिकोटा से ये लॉन्च होना था। मैंने पिताजी को चिट्ठी बताई, पार्टनर मेरे अब्रॉड गए थे। पिताजी ने बोला अब तू जाके क्या करेगा भाई, तेरा लड़का है 7th स्टैंडर्ड में, उसको ले जा, वाइफ भी इंजीनियर है, तुझे इतना सहयोग भी दिया है उसने फैक्ट्री बनाने में, उसको ले जा। मैंने एक फैक्स डाल दिया कि भाई आई वुड लाइक टू ब्रिंग माय फैमिली। सामने घंटे भर में जवाब आ गया, यू कैन ब्रिंग योर फैमिली। जब हम श्री हरिकोटा पहुंचे तो हमें जो हमारा रॉकेट होता है लॉन्च स्टेशन, वहां पे रॉकेट के बाजू में जो लिफ्ट है, उस लिफ्ट में हमें ऊपर ले जाया गया। हम ऐसी 11 कंपनी के लोग वहां पे थे, एक नहीं 11 के। फैमिली मेरा अकेले था, थोड़ा मैं शाय भी फील कर रहा था, बट ऊपर गए और उसने बोला यहाँ पे टच कर ले, तेरे ट्यूब यहाँ पे पहुंच गए भैया। नाउ दिस वाज क्लाइमेक्स, पहला क्लाइमेक्स लाइफ में मैरिज था, पता ही नहीं चला क्या हुआ। और ये दूसरा क्लाइमेक्स था कि हम लोग डिवोट हो गए हमारे स्पेस प्रोग्राम में। जब हम वापस आए, मैंने मेरे पार्टनर को बोला कि भैया साइंस मिनिस्टर को भी यहाँ नहीं ले जाते ये लोग, वहां पे 6000 कंप्यूटर के सामने बैठ के दिखा देते हैं कि देखो ये लॉन्च हो रहा है। ऐसा मौका जिन्होंने हमें लाइफ में दिया है, उनके लाइफ टाइम कमिटमेंट अभी कर दो इनके साथ। इनको 300 ग्राम भी सामान चाहिए तो हम दे के जाएंगे। और जो यात्रा वहां से शुरू हुई आज तक, मतलब करीब 23वां साल है हमारा इसरो के साथ। न तो एक भी और पार्टी इंडिया में उनको ये ट्यूब अभी तक सप्लाई करने के लिए पहुंच नहीं पाई है। कहते हैं ना ब्लू ओशन स्ट्रेटेजी में, रियल ब्लू ओशन में हम लोग वर्क कर रहे हैं। और इनके जितने आइटम आते हैं उसको वरी किए बिना हम लोग उनको सप्लाई करते जाते हैं। इंडिया के जितने कम्युनिकेशन सैटेलाइट ऊपर जाते हैं उसमें इनवेरिएबली सिद्धि के ट्यूब अंदर होते हैं। तो ये एक इतना बड़ा मौका था इसरो के साथ काम करने का, जिसने हमारे छोटे ऑर्गेनाइजेशन, बिकॉज वी आर अ स्मॉल स्केल यूनिट, तो उसका लेवल बहुत ऊपर उठा दिया। प्रॉफिट का मुझे आज भी पता नहीं है कि हम लोग इसरो के कार्य में, और न तो उसकी हम कॉस्टिंग निकालते हैं, क्योंकि ऐसे मौके शायद भगवान ही यहाँ पे भेज सकते हैं कि भैया तू ये कर ले। ऐसा ही एक और मौका आया कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स जो है नवी मुंबई में, वो शेल्टर भी बनाता है हमारी डिफेंस फोर्सेस के लिए, और साथ साथ में टेलीस्कोपिक मास्ट बनाता है। आप लोग तो सब लोग काफी अलग अलग फील्ड में एक्सपीरियंस्ड है, बट स्टूडेंट्स के लिए मैं बताऊं तो रेडियो का जो एरियल होता है उसी तरह का ये टेलीस्कोपिक मास्ट होता है। पूरी चाइना बॉर्डर पे हर आधे किलोमीटर पे ये मास्ट लगे हुए, जो रात को ऊपर जाते हैं, पूरी रात भर में डोकलाम में इधर उधर देखते रहते हैं कि यहाँ पे क्या मूवमेंट है। सुबह जैसे ही सूर्य की किरण आती है उसके पहले पहले वो नीचे आ जाते हैं। ये मास्ट की पूरी ट्यूब जो है हमारा कंट्री 100% बाहर से यूरोप से लाता था। 2008 में हमने ये कसरत शुरू करी थी इंडिजिनाइजेशन की, और
2014 में हमें फर्स्ट अप्रूवल मिला। इंसिडेंटली उसकी पेटेंट भी हमें मिली हुई है, क्योंकि हमने जो कार्य किया, हमने उसको लाइटर बना दिया, उसकी स्ट्रेटनेस सुधार दी, उसके इसेंट्रिसिटी बदल दी, ताकि जो है फॉरेन से जो सामान आता था, ये सामान जो बना उसमें कंटेंट 100% इंडियन है। मतलब जो हम लोग क्लास 1 सप्लायर की बात करते हैं ना, कि क्लास 1 को 50% से ज्यादा कंटेंट होनी चाहिए, और 2014 से आज तक जितने टेंडर बाहर निकले बीएल के, क्योंकि उनको टेंडर तो निकालने पड़ते, बट 100% हैव बीन एलोकेटेड टू सिद्धि, जो हमारी फर्म का नाम है सिद्धि इंजीनियर्स। बट यहाँ पे मैं ये स्टोरी मैंने इसलिए शुरू करी कि मैं थोड़ा रमेश सर की बात को लिंक करना चाह रहा था कि ये स्टोरी के पीछे हुआ कैसा, कि हमारे वहाँ जो है कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस हमने डेवलप करी है जो हमारे माइंड सेट को कहती रहती है, भैया कोई भी चीज इस वर्ल्ड में नामुमकिन नहीं है। तो उस स्टोरी पे आने के पहले मैं इतना बता दूं कि हम लोग इंजीनियरिंग पास किया था 81 में, और 83 में मैंने एमबीए किया यहाँ अहमदाबाद में लोकल स्कूल से। मुझे अच्छी कॉलेज में मिला था एक्सएलआरआई में। पिताजी को पूछा, उन्होंने एक सेंटेंस में आंसर दिया कि तुझे करना क्या है। मैंने बोला मैं तो बिजनेस करूंगा। तो बोले जहां पे तुझे बिजनेस करना है वहीं पे रूट्स डीप कर लो, तू कौन सी कॉलेज से एमबीए करता है वो महत्व नहीं है, कहाँ से करता है उसका महत्व बहुत है। क्योंकि अगर आपके रूट्स यहाँ पे डीप होंगे तो आप जब बिजनेस करोगे ना, तो आपको पूरे स्टेक होल्डर्स जो है वो आपकी मदद में काम में आ जाएंगे। तो इंजीनियरिंग में मेरे जो क्लासमेट थे भगवत पटेल जी, और हम दोनों ने थैला जब रखा हॉस्टल में वहां पे, तो हम एक दूसरे को जानते नहीं थे, बट जो पार्टनर है वो लेना होता है वहां पे। पर 5 साल हम लोग इंजीनियरिंग में एक ही क्लास में रहे और एक ही रूम में रहे। तो तब हम लोग ने तय किया था कि अपने कुछ साथ में करेंगे। और देखो इनकी सरनेम पटेल है, बहुत हिम्मत वाले होते हैं। 3-4 साल मैंने नौकरी करी, उसने 6-7 साल करी। पहले वो अपने फैमिली बिजनेस में गए, फिर उन्होंने पिताजी को बोला मुझे फैमिली बिजनेस में नहीं जाना है। फिर उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग में जॉब करी, मैं मार्केटिंग में जॉब करता था। एक दिन आ गए, बोले प्रशांत हम दोनों ने सोचा था कि कुछ अपना करेंगे। मैं बोला बात तो सही है भैया, बट मेरी तो मंगनी अभी अभी हुई है, ससुर बोलेंगे भाई तुम्हारे पास है क्या, है ना, तुम बिजनेस की बातें कर रहे हो। तो बोले एक काम कर, मैं कल से नौकरी छोड़ देता हूं। मैं बोला अभी तय तो नहीं किया है क्या करना है। बोले वो तू तेरी सोच लगाता रहे, कल से मैं नौकरी छोड़ देता हूं। तो मैंने बोला जब तक हमारी फैक्ट्री चालू होगी ना, मेरी सैलरी अच्छी है, आधी आधी बांट देंगे, ताकि तुझे जॉइंट फैमिली में है, पिताजी को कभी बोलना नहीं पड़े कि भाई शादीशुदा हूं और घर पे पैसा नहीं लाता हूं। तो 6 महीने लग गए, सोचा क्या करेंगे, कुछ प्रिंसिपल्स बनाए। पहला प्रिंसिपल था जो सर ने बता दिया, मुझे अभी रिपीट करने की जरूरत नहीं है, फंक्शनली बेटर इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट्स। दूसरा ये था कि जॉइंट फैमिली है दोनों के, कोई भाई भांडू पिताजी से 1 रुपया भी नहीं लेंगे। हमारे दोनों के पास 5-5 हजार रुपया जरूर था। तीसरा प्रिंसिपल था जो काम करेंगे वो यूनिक होना चाहिए, एटलीस्ट गुजरात में ऐसी कोई फैक्ट्री नहीं होनी चाहिए। चौथा प्रिंसिपल ये था कि भैया 1 भी रुपये का काम डे 1 से ऑन पेपर नहीं है तो नहीं करेंगे, चाहे कितना भी टैक्स लग जाए, कंट्री का जो लॉ है उसके अंडर रहते हुए ही काम करेंगे। तो इतना सोच के 6 महीना तक हमने सर्वे किया। सर्वे करने में हमने 2 चीज देखी कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग जो है वो ध्यान में रखेंगे, दूसरा हमने जो अनुभव भी लिया है उसमें ध्यान में रखेंगे, बल्कि जहां पे काम किया है
उसको डैमेज हुए ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे, वैसा ही धंधा ढूंढेंगे। तो करते करते हमें ऐसा लगा कि हम लोग कोल्ड ड्राइंग के ट्यूब की कोल्ड ड्राइंग के बिजनेस में जाए। फिर मेटल तय करने की बात आई, तो हमारा सर्वे ये कहता था, तब तो बुक सर्वे था, कि भाई एल्यूमिनियम इज गोइंग टू बी द मेटल फॉर 21st सेंचुरी। तो वी सेड कि एल्यूमिनियम कोल्ड ड्राइंग का धंधा करेंगे। ढूंढा, कोई नहीं था वेस्टर्न इंडिया में। कैलकाटा गए, एक दो लोग थे, वो टीवी एंटेना के ट्यूब्स बनाते थे। दिल्ली में रघुश्री मार्केट में गए, वहां पे भी एक दो लोग थे, टीवी एंटेना के ट्यूब बनाते थे। तो हमने सोचा कि देयर इज अ बिग गैप इन द कंट्री। ये बिजनेस जो है जेन्युइनली नेसेंट स्टेजेस में है, हमारे कंट्री में नेसेंट स्टेजेस में है, एंड लेट अस फिल दैट गैप। तो इसके लिए देखिए, आज तो गवर्नमेंट स्टार्टअप को बहुत सहाय देती है, बट ये मैं कहना चाहूंगा कि उस टाइम पे भी न्यू एंटरप्रेन्योर स्कीम थी, जहां पे आपको मुश्किल से कुछ पैसा लगाना था। इवन आपको जो सब्सिडी मिलती थी, बिकॉज वी वेंट टू बैकवर्ड एरिया स्पेशली, दैट वाज कंसीडर्ड पार्ट ऑफ द इक्विटी। तो मुझे तो प्रोजेक्ट लगाने में खाली 5% पैसा लगाना पड़ा। वो भी हमने ये प्रोजेक्ट शुरू होते होते पहले एक छोटा सा और बिजनेस कर लिया, एक बुक स्टैंड बनाने का। नॉर्मली हमारे शास्त्र ऐसे पढ़े जाते हैं, आप देखेंगे हमने ऐसा कर दिया है ना, और 4 ब्लाइंड पर्सन को लगा दिया कि भैया 1 रुपये का बनता है, हर ऑफिस में जाओ, सुबह लेके जाओ, शाम को कलेक्शन दे जाओ, दूसरा माल ले जाओ। और उसको भी 1 रुपया मिलता था, सामान भी 1 रुपया का था, 5 रुपये में बेचते थे, 3 रुपये हमें मिलता था। हमारी इक्विटी बन गई उससे। मैंने जैसे आगे बताया कि ये हमारे बिजनेस के जो कंसेप्ट थे, वो कंसेप्ट को अभी ऑपरेशन में अभी कैसे लाना। तो हमने शुरुआत की एक वर्कर से। शुरू में 6-8 महीना हम लोग अपने आप मशीन पे काम करते थे। 24 घंटा 3 महीने में फैक्ट्री चलने लगी। बट वहां हमने किया क्या कि इसरो जैसी या भारत इलेक्ट्रॉनिक जैसी, या आज अभी हमारे जो कस्टमर है ब्रह्मोस मिसाइल या भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, यू नेम द ऑर्गेनाइजेशन इन द कंट्री विच इज डूइंग क्रिटिकल जॉब, एंड इफ दे रिक्वायर एल्यूमिनियम ड्रॉन ट्यूब, सिद्धि इज देयर। बट उस टाइम पे हमने क्या किया, हमने ऐसे प्रोडक्ट से शुरुआत करी जहां पे वो डे 1 से मार्केट में चलने लगे। नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर एनी स्टार्टअप, क्योंकि हमारा अनुभव ये कहता है कि पहले फैक्ट्री चलना लगनी चाहिए। हम लोग अगर रिसर्च का काम शुरू से करें ना 2-3 साल, तब तक तो हमारे कई फ्रेंड जो है ना, वो वहां पे बिजनेस से विदा लेने की तैयारी कर चुके थे। यहाँ ये था कि हमने एक बाजू कॉमर्शियल प्रोडक्ट्स जो है वो मार्केट में डालना शुरू किया, और दूसरी बाजू सर्वे करके जो जो लोग इंपोर्ट करते थे एल्यूमिनियम प्रिसीजन ड्रॉन ट्यूब, और ज्यादातर वो 3 कंट्री से आती थी, जर्मनी से, जापान से और साउथ कोरिया से। वहां पे हम जाने लगे, उनका प्राइस स्टडी किया इंपोर्ट में, उसको थोड़ा पोजीशन करने लगे इंपोर्ट से थोड़ा नीचे, और फंक्शनली बेहतर फीचर डालने की हमने शुरुआत करी। आज ये स्टोरी का एक मुकाम ऐसा है कि हमारे कंट्री में सबसे ज्यादा ट्यूब जर्मनी से आते थे। अभी हम लोग कंटेनर लोड में यहां से जर्मनी मटेरियल रेगुलर बेसिस पे बिक्री कर रहे हैं, और वहां पे उनके मैन्युफैक्चरर है, हम जहां पे देते उससे 100 किलोमीटर में ही उनके मैन्युफैक्चरर है। बट पैसे की बात नहीं है, क्योंकि यहाँ से माल को पहुंचने में भी 45 डेज लगते हैं, वहां पे उसको 2 घंटा लगता है। बात यह है कि फीचर्स हमने ऐसे डाले हैं कि इवन हमारे जर्मन एडवाइजर ने जाके हमारे कस्टमर को बोला कि भैया माल यहाँ से लेने जैसा है, तुम्हारे वहां से जो मटेरियल आता है उससे माल ये खरीदोगे तो लॉन्ग रन में आपकी फैक्ट्री ज्यादा चलेगी, आपको अभी ये जरूरत है, समझ लो। तो ये करते करते हम लोग काम करते जाते हैं। अभी बात यह है कि
हम लोग ने जैसे 2014 में सबसे पहला पेटेंट अप्लाई किया और हमें मिला, बट उसके पहले ऐसे कई काम हुए थे जहां पे हमें अपने को ज्ञान ही नहीं था कि इसकी पेटेंट हमें अप्लाई करनी चाहिए। हमारे मन में यह था कि पेटेंट अप्लाई करेंगे, इसका खर्च भी बहुत आएगा। बट देखिए, हमारे मित्र थे मेरे एमबीए में 2 साल सीनियर, जिसको हमने देखा नहीं था क्योंकि 2 साल के पहले तो वो निकल चुके थे, बट उसको पता लगा कि भैया ये 2 लड़के ऐसे ऐसे काम कर रहे हैं जो बहुत यूजफुल है। तो ही स्कोल्डेड अस कि मूर्ख लोग, आप जो है अगर पेटेंट नहीं अप्लाई करोगे तो अपने आप को प्रोटेक्ट कैसे करोगे। और तब से हमने फिर केपीआई लिया, हमारा ओनर का केपीआई, पार्टनर्स का केपीआई, वर्किंग मैनेजर्स का केपीआई, कि हर साल मिनिमम एक पेटेंट अप्लाई होनी चाहिए। और उसके तहत 2014 से करते करते अभी हमने 15 पेटेंट जो अप्लाई किए हैं, उसमें से 7 पेटेंट मिले हैं, 6 पेटेंट इंडिया में मिले हैं, 1 पेटेंट आपको खुशी होगी कि इजराइल में मिला है सर। नॉर्मली वहां से टेक्नोलॉजी यहाँ आती है। आज मौका ये है कि इजराइल पिछले कई सालों से हर दूसरे महीने हम लोग 1 कंटेनर सामान वहां बेचते हैं। वी प्रोटेक्टेड अवर सेल्स, हमने वहां पे वॉल बना दी। वो लोग, हमारा जो S-400 से हम लोग वॉल बनाते डिफेंस में, इजराइल में भी वैसी वॉल है जो शत्रु को नहीं आने दे। हमने भी वॉल बना दी वहां से पेटेंट लेके, कि वहां पे कोई भी दूसरा आदमी इजराइल की मार्केट में एंटर नहीं कर जाए सर। तो ये पेटेंट वाली यात्रा जो है वो धीरे धीरे हमें बहुत पसंद आने लगी, और पसंद आने लगी तो हमने भी ये किया कि हमें भी जरूरत थी कि हम लोग एक टेक्नोलॉजी हमारी जो है अपग्रेड कर दे जाए। तो हमने, हमारी साइज ऐसी है कि वी आर अ स्मॉल स्केल, है ना, तो हमने ये यात्रा में एक रास्ता निकाला। जर्मनी और नेदरलैंड में ऐसे एक्सपर्ट अवेलेबल है जो आप सबको जानकारी भी होगी। जर्मनी में SES और नेदरलैंड में PUM, ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन ऐसे हैं जो बहुत सीनियर लोग, जो रिटायर्ड लोग होते हैं, उनको आपके वहां पे एक्सपर्ट के तौर पे भेजते हैं। तो हमने ये व्यवस्था कई सालों से कर ली है कि बढ़िया से बढ़िया एक्सपर्ट, हमारे सिलेक्टेड एक्सपर्ट हर साल करीब करीब हमारे वहाँ 15 दिन के लिए काम करने के लिए आते हैं, हमें एडवाइस करने के लिए आते हैं, 1-2 स्टेप चढ़ा के जाते हैं, और पूरे साल भर वहां से वो हमारे साथ जुड़े रहते हैं, एडवाइस करते रहते हैं, इंप्रूवमेंट कराते रहते हैं। तो उसके तहत हमारे वहाँ काफ़ी बढ़िया बढ़िया इंप्रूवमेंट हम लोग कर पाए। और मैं ये कहता हूँ कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स जो यहाँ पे गुजरात में है, वी कुड ऑर्गेनाइज सच एक्सपर्ट फॉर देम ऑल्सो, ताकि उनके वहाँ पे जो कोर्सेज का लेवल है, जो स्टूडेंट की पढ़ाने की जो पेडागोगी है, उन सब में इनका प्रदान यहाँ पे होता रहा। हमारे जैसे और मित्र है वैसी 27-28 इंडिविजुअल कंपनीज में वी सपोर्टेड अवर फ्रेंड्स फॉर गेटिंग सच एक्सपर्ट्स। और ये एक्सपर्ट्स जो है उनसे हमारी दोस्ती भी इतनी बढ़िया होती जाए कि हम लोग जब जर्मनी जाते हैं तो हम होटल में नहीं रह पाते, हमारे एक्सपर्ट के घर पे ही हमें रहना होता है। और उनकी वाइफ ये कहती है कि सर, मेरे हस्बैंड जो है ना, वो आपके यहाँ आते हैं तो वो यंग रहते हैं। और क्योंकि हम लोग तो दोनों अकेले रहते हैं ना, दोपहर को 3 बजते और वो ईमेल पे बैठ जाते हैं, तो ही रिमेन्स बिजी एंड ही रिमेन्स यंग, एंड दैट्स हाउ वी लिव आवर लाइफ। एनीवे, मैं स्टोरी को आगे ले जाते हुए कि देखिए ये जो पार्टनरशिप है, सर ने 27 साल बोला, करीब करीब वो सही है, बट वी स्टार्टेड अवर बिजनेस इन 88, सो वी हैव जस्ट एंटर्ड इनटू 38 इयर्स ऑफ बिजनेस पार्टनरशिप, एंड हमने 76 में थैला हॉस्टल में साथ में रखा था। तो बस ये साल में वी हैव एंटर्ड 50th ईयर ऑफ आवर रिलेशनशिप। तो ये जो पार्टनरशिप है सर, इट इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ व्हाट, जब हम मिले तो हम दोनों ने तय किया था कि अवर पार्टनरशिप इज नॉट फॉर प्रॉफिट,
इट इज फ्रेंडशिप फॉर लाइफ। और बाय गॉड्स ग्रेस आप जो सोचते हो ना, भगवान उसमें मदद करता है। अड़चने तो बहुत आई बिजनेस में, चांसेस आए कि बंद हो जाए हमारा धंधा। ऐसे कभी एक्साइज की रेड पड़ी, कभी सेल्स टैक्स की रेड पड़ी, कभी एसोसिएशंस ने डिसाइड किया, एक्सट्रूजन वालों ने, कि भैया ये सिद्धि वाले जो है हमें जिंदाल को प्रीमियम नहीं देते, वो माल डालते हैं तो जिंदाल प्रीमियम नहीं ले पाता है। उन्होंने फाइन भी डाल दिया उनके मेंबर पे कि इनको रॉ मटेरियल मत दो। मतलब मैं कहता हूँ 10-12 तरह के अलग अलग कैलामिटीज जो हमारी लाइफ साइकिल में आते हैं वो आए, बट गॉड्स ग्रेस कि मेरे पार्टनर भगवत पटेल जी जो इतने इतने सॉफ्ट हार्टेड है कि मेरी हर चीज उन्होंने चला ली, हर चीज चला ली और कभी मुझे छोड़ा नहीं। मेरे फैंसीज तो इतने थे कि मैं जब ब्रह्मोस में मुझे बुलाया तो रशियन कोलैबोरेशन ब्रह्मपुत्रा मॉस्को ब्रह्मोस, अभी रशियन अंदर एंटर ही नहीं होने देते थे। और हमारे जो मार्केटिंग के हेड है वो जब वहां गए थे तो कलाम साहब प्रेजेंट थे। उन्होंने बोला कि हमारी एक मिसाइल 30 करोड़ में बनती है, आप 50-60 सप्लायर जो है यू कैन प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल टू ब्रिंग इट डाउन टू 12 करोड़ रुपीज, बिकॉज आई वॉन्ट दिस मिसाइल टू बी अवर फ्रंट रनर। उन्होंने ये क्लियर बोला था कि मिसाइल इज अ वेपन ऑफ पीस। अगर इंडिया के पास सबसे बढ़िया मिसाइल है तभी कोई भी देश हमारे सामने आंख नहीं उठाएगा। तो हम लोग तो अगेन कमिट हो गए थे। जब मैं काम लेके आया तो सबने ना बोल दिया, भैया ये काम इम्पॉसिबल है, इंक्लूडिंग माय जर्मन एडवाइजर। ही सेड प्रशांत यू आर मैड। मैंने बोला कि सर मैं क्या करूं सर, अभी जो है वही है, इसको आप जीत समझ लो तो जीत समझ लो, इसको आप जो समझना है समझ लो, नुकसान जाएगा बट ये काम होके रहेगा। फाइनली हमारे कंट्री के सबसे बड़े मेट्रोलॉजिस्ट जो डीएमआरएल में थे वो भी हमें सहाय करने आए, क्योंकि 48 जगह पे वो जाके आए थे सर, एंड दे नीडेड इट बैडली। ब्रह्मोस में जितने भी ट्यूब है, पाकिस्तान में जब मिसाइल गिर रही थी मेरा लड़का बहुत राजी हो रहा था। वो कह रहा था पापा आप बॉर्डर पे तो नहीं जा पाए बट हर मिसाइल के साथ हमारे ट्यूब तो वहां पे गिर रहे हैं सर, है ना। तो मैं ये कहता हूं जब बच्चे अपने राजी होते हैं ना, उससे बड़ा बिजनेस कोई नहीं होता है। माँ और लड़का जो बिजनेस को रिस्पेक्ट से देखते हैं ना, वो बिजनेस में उसकी गरिमा जो है ना वो एस्टैब्लिश हो जाती है। मैं मेरी बात को आगे ले जाते हुए इतना कहूंगा कि हमारे वहां पे प्रिंसिपल क्या है, व्हेन वर्क इज प्लेजर लाइफ इज जॉय। हर कंसाइनमेंट में हम लोग यहाँ पैसा नहीं देखते हैं, बट हम लोग ये जरूर देखते हैं कि जब कार्य में आनंद आता है तो जीवन खुशियों से भर जाता है। तो ये करने के लिए हमने क्या किया है, हमारे वहाँ करीब 44 यूनिक प्रैक्टिसेस एस्टैब्लिश करी है। मैं अगले 5 मिनट में ये इसमें से 3-4 जो बढ़िया प्रैक्टिसेस है उसकी थोड़ी क्विकली बात करता हूँ, क्योंकि हमारे पास ज्यादातर जो काम इम्पॉसिबल गिने जाते वो आते हैं। जैसे 70 mm रॉकेट का भी आया था, 7075 एलॉय, लोहे से भी ज्यादा टेंसाइल है, बट कर दिया। तो हमने हमारी फैक्ट्री की लोन में एक गड्ढा बनाया है, आप उसको कबर कह सकते हो, और वो ग्रेवयार्ड के ऊपर लिखा हुआ है हम जो जो चीज नहीं कर सकते हैं वो हम यहाँ बरी करते हैं। तो हम लोग ने पहली बार जब उसको एस्टैब्लिश किया आज से 18 इयर्स पहले, हमने 174 लोगों ने अपनी अपनी चिट्ठी अंडर डाल दी थी कि जो जो हम पर्सनल लाइफ में नहीं कर सकते हैं, जो जो हम बिजनेस लाइफ में नहीं कर सकते हैं, उसको हमने चिट्ठी में लिख के अंदर डाल दिया था। सर आप मानोगे, एक बैंकर आए थे, मेरी लिमिट तो बढ़ा के नहीं गए, क्योंकि उसने बोला तेरे रेशियोज बैठ नहीं गए, तू रिसर्च करता है इतनी ज्यादा क्यों रिसर्च करता है भैया कि तेरे रेशियोज नहीं बैठ रहे। बट उसने चिट्ठी डाली और 2 महीने के बाद फोन आ गया
कि भैया मेरा काम हो गया है। और ऐसे ही आप मानोगे, यहाँ पे अहमदाबाद में एक ईडीआई करके संस्थान है, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट, जहाँ पे हम लोग आइंदा जाते भी रहते हैं सीखने के भी लिए, लेक्चर देने के भी लिए। वहां से 21 कंट्री के 26 लोग एक दिन ये कबर में चिट्ठी डालने आए थे। और फिर तो एक नेदरलैंड से न्यूज़पेपर जो छपता है पम का, वो 60 कंट्रीज को जाता है, उसमें हाफ पेज बड़ा आर्टिकल आ गया कि इंडिया की एक फर्म में स्मॉल स्केल में ये जो नेगेटिव थॉट्स को बरी करने की चीज बनाई गई है, इट इज यूनिक इन द वर्ल्ड करके उन्होंने एक बड़ा आर्टिकल छापा एंड देन दे सेंड इट अक्रॉस टू अस। तो ये चीज जो है बड़ा काम करती है। दूसरी प्रैक्टिस हमने ये बनाई है कि हम लोग जो है हर सैलरी के साथ हमारी लोकल लैंग्वेज की एक बुक, पार्टनर से लेके सिक्योरिटी तक सबको ये जाती है सैलरी के साथ में। अभी 155 बुक, मतलब हर घर में हम लोग पुस्तक मंदिर बना रहे हैं। मोदी जी के साथ एक दिन मेरा मौका आ गया था, 14 बायोडेटा गए थे चैम्बर से कि कौन आपके साथ बोलेगा। समहाउ मुझे तो पता नहीं था, नाम सिलेक्ट हो गया, आ गया। तो जब मैंने ये 8-10 प्रैक्टिस की बात करी, मोदी जी उठ गए, सबको लगा ये तो इनका टाइम हो गया है तो चले जा रहे। बोले नहीं नहीं, मैं जाने वाला नहीं हूं, मैं एक्नॉलेज कर रहा हूं कि प्रशांत भाई जो बात कर रहे हैं, अभी तो मैं चीफ मिनिस्टर हूं, आप नेशनल लेवल पे उसको इंप्लीमेंट होते हुए देख पाओगे। तब सबको हिंट आ गई कि सर ये तो वहां जाने की बात कर रहे। तीसरी बात है, हमारे वहां जो है, हम जो जो लोकेशन पे काम करते, ऑफिस में, एक फैक्ट्री में, दूसरी में, हर जगह पे सुबह शुरुआत हमारी होती है एक्सरसाइज से, प्रेयर से और अच्छी खबर बांट के। और ये बारिश भी गिरता है ना तो ऑफिस के अंदर हम लोग आके करते हैं। बट ये चीज हमारे लाइफ की बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। होता क्या है, हमारे वहाँ टाइम मीटर नहीं है। कोई 10 मिनट आया, महीने में 3 बार लेट आया तो हमारा कोई मेल जाता नहीं है। आदमी को पता है कि हमारे ओनर मैनेजर हमेशा प्रेयर में प्रेजेंट होते हैं, और यहाँ पे इतनी बढ़िया बढ़िया खबर बांटी जाती है कि मैं अगर नहीं आया टाइम पे तो हम लोग पीछे रह जाएंगे। और हुआ क्या इसका फायदा, ये नॉलेज मैनेजमेंट का हमारे लिए सबसे बड़ा टूल बन गया है। मेरे हर कर्मयोगी को पता है कि अमेरिका में माल जाना है, वहां पे इंश्योरेंस बहुत लोग लेते हैं, लायबिलिटी, प्रोडक्ट लायबिलिटी इंश्योरेंस, तो वी हैव टू बी केयरफुल। इजराइल में माल गया और एक पीस भी खराब गया तो पूरा सामान वापस आएगा, क्योंकि उसको प्रेयर के टाइम पे ये शेयरिंग हो जाता है कि भैया आज इजराइल का ऑर्डर आया है, यहाँ पे हमें केयर लेनी है। लोग गुलामी में थे, बहुत सालों के बाद बाहर आए हैं, इनका कल्चर ऐसा है कि तुम्हारी एक चीज को भी वो छोड़ेंगे नहीं, है ना। तभी तो 1 करोड़ का कंट्री आजू बाजू के कितने कंट्री को अभी कहीं पे भी मचक नहीं दे रहा है, तो प्रोडक्ट में की क्यों देगा। तो हम लोग भी उतने केयरफुल हो गए। साथ साथ में एक और हमारी व्यवस्था ऐसी होती है कि सब बड़ी कंपनी में मैनेजमेंट रिव्यू मीटिंग होती है, हमारे वहां पे भी होती है, क्योंकि वी आर ISO 9001, 14001 एरोस्पेस सर्टिफाइड भी है। इंसिडेंटली कंट्री की ये एक ही फर्म है जो एल्यूमिनियम प्रिसीजन ड्रोन ट्यूब में एरोस्पेस प्रोडक्ट्स का स्टैंडर्ड AS 9100D रखती हुई है पिछले 11-12 साल से। बट बात यह है कि हर वर्कर को, हर कर्मयोगी को काम में इन्वॉल्व कैसे होना, क्योंकि ड्रीम तो तभी रियलाइज होता है जब वो सभी का हो जाता है। तो यहाँ पे क्या व्यवस्था है कि हर तीसरे महीने कर्मयोगी की रिव्यू मीटिंग होती है, और हम पार्टनर इनवेरिएबली उस मीटिंग में सालों से प्रेजेंट होते हैं। तो वहां पे वो बात करते हैं क्वालिटी की क्या क्या दिक्कतें आई, वहां पे उनको 5S में क्या करना है, यील्ड सुधारने के लिए क्या करना है। बाय रोटेशन दे मेक प्रेजेंटेशंस।
Now this is one of the very very wonderful tools. और लास्ट प्रैक्टिस में बताऊंगा जो हमने कहीं से सीखी है और वो इतनी यूजफुल है। मेरे पार्टनर ये प्रैक्टिस सालों पहले ले आए थे कि उन्होंने हमारे वहाँ एक फुल टाइम छोटी सी इनोवेशन टीम एस्टेब्लिश करी है। इसका काम क्या है? प्रोडक्ट, प्रोसेस और इक्विपमेंट, ये तीनों में सुधार करते रहना। और इनको इनपुट कहाँ से मिलता है? हमारे कर्मयोगी जो है 7 तारीख को जो सैलरी लेते हैं उसके पहले उनको एक फॉर्म भरना होता है छोटा सा, कि भाई तुम्हारे एरिया में चौखाई सुधारने के लिए आप क्या चाहते हो, आप जो काम करते हो वहां पे आपको और सुविधा क्या चाहिए, यील्ड सुधारने के लिए और प्रोडक्टिविटी इंप्रूव करने के लिए आपके क्या सुझाव है। अभी ये फॉर्म में हर चीज वो नहीं भरते हैं, कुछ कुछ चीजें भरते हैं, बट ये जो मसाला हमें मिलता है, ये मसाला दैट बिकम्स द मिशन फॉर आवर इनोवेशन टीम। और फिर 3 महीने का उनका काम मिल जाता है। वो जब थोड़े प्रोजेक्ट खत्म करते हैं तो और 3 महीने का काम उनके लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि जो कर्मयोगी है, जो फ्लोर पे काम करते हैं, उसको जितना पता होता है उतना हमें कभी पता नहीं होता है। एंड दोज इनपुट्स आर very very vital, which we are able to harness and then put it to use through this innovation team. तो ये जो 5 प्रैक्टिस मैं कह रहा हूं, इसमें हम लोग कहीं पे भी इसको छोड़ते नहीं है, इसको बराबर पकड़ के रखा है, क्योंकि यही हमारा ब्रेड बटर है ना। मैं कुछ काम नहीं करूंगा तो चलेगा। लोग भी बोलते हैं प्रशांत भाई का काम क्या है? आके बैठना, लोगों को सुनना और जाके कहानियों सुनाना, जो आज मैं कर रहा हूँ सर। एनीवे, मैं आगे जाता हूँ कि हम लोग क्या क्या काम लेते हैं सर। कई लोग ने इकिगाई तो बुक पढ़ी होगी, है ना। हम क्या करते हैं, जो चीज हमें आती है, जो चीज में हमें आनंद आता है, जो चीज से सोसाइटी को बेनिफिट होता है, और लास्टली जो चीज से हमें पैसा मिलता है, ये 4 चीज को मद्देनजर रखते हुए हम कोई भी प्रोडक्ट के डेवलपमेंट को, कोई भी सेगमेंट के डेवलपमेंट को सिलेक्ट करते हैं सर। और दूसरा ये है कि हमारा और एक प्रिंसिपल है, मैं कह रहा था ना शुरू में, वी विल बी शेयरिंग अ फ्यू प्रैक्टिसेस। हमारा ये प्रिंसिपल है कि कोई भी कंप्लेन आती है, क्योंकि देखो हम लोग जो काम करते हैं उसमें लोगों की अपेक्षा क्या है कि भैया तेरी प्रोडक्ट जर्मन प्रोडक्ट से कितनी अच्छी है, जापानीज से कितनी अच्छी है। तो वहां पहुंचते पहुंचते एक एक्सपीरियंस कर्व तो हमें निकालना पड़ता है। और वहां पे क्या है कि कंप्लेन जब आ जाती है, कभी ऐसा भी होता है कि हमारी एक फैक्ट्री में जो हम लोग करीब 80% सामान बाहर भेजते हैं, अभी वहां पे उस पे यान कैरियर वगैरह बनते हैं, तो पॉलिएस्टर नायलॉन धागा लपेटा जाता है। अभी कहीं पे उनके डेनियर चेंज हो जाते हैं। अभी ऐसे डेनियर निकले हैं जहाँ पे वो स्पोर्ट्स वाले जो है उनका बॉडी का टेम्परेचर 3-4 डिग्री कम कर दे। कहीं पे ऐसे डेनियर निकले जो वहां पे वो स्ट्रेंथ को बहुत हाई कर दिया। तो हमें तो पता नहीं होता है, प्रोडक्ट हमने भेजी है, चल रही है, अचानक आता है भाई अभी तो नहीं चल रही है, क्योंकि हमने तो धागा बदल दिया। तो हमने 2 चीज एडॉप्ट करी है। और एक चीज जो पहली कह रहा हूँ, हमने जो लामा जी यहाँ पे आए थे एक लेक्चर देने, है ना, उनसे उन्होंने बहुत शॉर्ट में वाक्य बताया था कि जब भी कोई कैलामिटी आती है ना, एम्ब्रेस इट। और कोई भी कंप्लेन है उसको हम गोल्ड माइन के तौर पे लेते हैं। तो अभी हुआ ही ऐसा कि 2 साल पहले कंप्लेन आई फॉरेन से। हम कहते हैं नो आर्ग्यूमेंट्स, व्हेन यू से इट इज अ कंप्लेन प्लीज एक्सप्लेन एज मच एज पॉसिबल। हमें मौका दीजिए कि हम समझे कि क्या हो गया है, जो हमारी गलती है, भले वो इनएडवर्रेंट गलती है, क्योंकि हम सोच के तो गलती नहीं करेंगे, बट लेट अस अंडरस्टैंड। और उसके पीछे जैसे एक एक जो अभी हमारी कंप्लेन आई थी, उस पे हमने 58 एक्सपेरिमेंट्स किए, 58 एक्सपेरिमेंट्स हमारी फैक्ट्री में 1.5 साल तक। और हुआ ऐसा कि गोल्ड माइन की तरह
उसकी आज हम लोग पेटेंट फाइल कर रहे हैं। तो जो भी कैलामिटी है वो एम्ब्रेस करने की जो लामा जी ने बात करी थी, तब मैं समझा नहीं था। मैं उतना ही समझा था कि अभी ऐसा करना है, बट आज अभी मालूम हो रहा है कि वो भाई साहब जो है, जो बुद्धिस्ट महाराज जो है, वो क्या कह रहे थे वो अभी मालूम पड़ा। तो ये हमारी लाइफ की जर्नी है। सर हम लोग कर क्या रहे हैं? हम लोग ने एक ब्लू ओशन स्ट्रेटेजी का लेक्चर सुना था यहाँ पे अहमदाबाद मैनेजमेंट एसोसिएशन, विच इज वन ऑफ द बेस्ट मैनेजमेंट एसोसिएशन इन आवर कंट्री। वहां पे एन रविचंद्रन साहब आईआईएम से आए थे और ब्लू ओशन स्ट्रेटेजी का एक लेक्चर दिया था। एक बहुत छोटा सा ग्राफ जो था वो हमारे दिल में आज से 20 साल पहले चिपक गया कि भैया तू रेड ओशन में काम करेगा ना, तो तुझे जो है प्राइस और क्रेडिट टर्म्स ये दो पे काम करना पड़ेगा। बट अगर तू जो ब्लू ओशन में काम करेगा तो तुझे रिस्पेक्ट भी मिलेगा, प्राइस भी मिलेगी, पैसा भी पहले मिलेगा, और जब जो भी काम करेगा उसका तुझे जो आनंद चाहिए वो तुझे आता रहेगा। तो हमने अभी क्या किया है, जो जो पेटेंट हम ले रहे हैं, वी ट्राई टू बीट अवर सेल्स। जैसे मैंने एक सुपर स्ट्रेंथ कॉप निकाला सिंथेटिक यार्न मार्केट के लिए, अभी मैंने 4.5 लाख पीस बेच दिए उसके। तो हमने अभी एक्सरसाइज शुरू करी है पिछले 1 साल से कि लेट अस बीट अवर सेल्स, सो दैट किसी को हमें बीट करना होगा तो उसको 5 साल की एक यात्रा तो निकालनी पड़ेगी। तो ये चीज हम लोग करते रहते हैं। बट हमारी लाइफ में ब्लू ओशन वर्ड जो है, दैट मेड अ बिग डिफरेंस। दूसरा ऐसा हुआ कि लीन जो है, लीन एमएसएमई तक पहुंचता बहुत कम है सर। बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में मैं जाता हूँ, बिरला कॉपर में, वहां लिखा है वर्ल्ड क्लास मैन्युफैक्चरिंग प्रोग्राम। उसके कंसल्टेंट है, जैसे ही नया यूनिट होता है वो अपने आप आ जाते हैं और वहां पे काम शुरू हो जाता है। हमारे लिए गवर्नमेंट ने इतना बड़ा काम किया सर। इन 2009 दे केम आउट विथ अ लीन क्लस्टर स्कीम फॉर एमएसएमईज। एंड इंसिडेंटली मैं एक एसोसिएशन का मुझे प्रेसिडेंट बनाया गया था, ऑल इंडिया एसोसिएशन का। तो उसमें मुझे काफी ट्रांसफॉर्मेशन लाने की जिम्मेदारी थी, क्योंकि पहले लोग लड़ते झगड़ते थे गवर्नमेंट के साथ, वही तो काम होता था एसोसिएशन। मैंने बोला सर मुझे तो झगड़ना आता ही नहीं है, कभी कभी वाइफ के साथ कभी हो गया बराबर है, बाकी उसके अलावा आज तक कहीं झगड़ा ही नहीं हूं मैं, है ना। तो उन्होंने बोला नहीं, तुझे भैया बुलाए इसलिए कि यू ब्रिंग ट्रांसफॉर्मेशन। तो वी ब्रॉट ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू लीन, थ्रू टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन एंड थ्रू इंटरनेशनल मार्केटिंग। पर उसमें लीन वाला जो है, मैं क्लासिक एग्जांपल बताता हूँ कि मेरी भी सप्लाई चेन है, भले मेरा माइक्रो यूनिट है, मेरे साथ 10-12 फैक्ट्रियां ऐसी जुड़ी हुई है जो 80%, 90%, 100% मेरा काम करते हैं। कोई मोल्डिंग करता है, कोई एनोडाइजिंग करता है, कोई शीट मेटल वर्क करता है। तो अभी हमने जब सप्लाई चेन का क्लस्टर बनाया, तो मेरा जो सबसे अनपढ़ सप्लायर, मतलब जो वेंडर था, उसने सबसे बड़ा काम कर दिया। मैं 6 ही महीने के बाद जब उसकी फैक्ट्री देखने गया, तो सर उसने मुझे बोला चलो सर बाजू के गाले में चलो, बाजू के शेड में। बोला क्या है भैया? बोले चलो तो सही। गया तो दिखाने लगा कि सर ये मैंने भाड़े पे दे दिया, मेरा यहाँ वैल्यू स्ट्रीम मैपिंग हुआ, मेरे वहां पे फ्लो मैनेजमेंट हुआ, मेरे पास वर्टिकल स्पेस का उपयोग हुआ, और ये सब चीज करते करते सर मेरा तो एक गाला फ्री हो गया। 35,000 भाड़ा आता है, घर में वाइफ को दे देता हूँ, अभी फैक्ट्री नहीं चले मेरी कोई चिंता नहीं है। आपका लीन ने मेरा जीवन उजाल दिया। सर मैंने ये जिक्र क्यों किया बताता हूँ। देखिए अभी लीन जो है गवर्नमेंट की क्लस्टर्स की स्कीम है, छोटे छोटे यूनिट को खाली 5% पैसा निकालना पड़ता है, बाकी का सब गवर्नमेंट देती है। बट 2047 की अगर तैयारी करनी है तो हम लोग सरकार को बोलते रहते हैं। अभी वाइब्रेंट गुजरात था यहाँ पे, रीजनल वाइब्रेंट, वी वेर ऑनर्ड विथ प्राइड ऑफ गुजरात। बट हमने बोला कि सर प्राइड ऑफ गुजरात की बात नहीं है आपके वाइब्रेंट में। मोदी जी भी यहाँ पे आए थे 12 तारीख को,
हमारी बात यह है कि ये ट्रांसफॉर्मेटिव इनिशिएटिव जिसका पिछले 10-12 साल तो ऑलरेडी कंट्री ने 500-600 लीन क्लस्टर बन चुके हैं सक्सेसफुली। तो अभी पूरी जीआईडीसी को ले लो, जीआईडीसी मतलब यहाँ पे गुजरात इंडस्ट्रियल कहते हैं, आप में जेडआईडीसी होगा, झारखंड का जेआईडीसी होगा, जो भी होगा, बट पूरे के पूरे इंडस्ट्रियल एसोसिएशन या तो पूरे के पूरे इंडस्ट्रियल वर्टिकल, जो 10 वर्टिकल हमारे कंट्री में 80% काम करते हैं ना, उसको लीन बना दो। क्योंकि कंट्री को अगर एमएसएमई को कॉम्पिटिटिव बनाना है, नॉट ओनली ऑन प्राइस, डिलीवरी, क्वालिटी, कल्चर, कई चीजों में, तो लीन को जो है ना, क्योंकि इंडस्ट्री 4.0 आ रहा है, हम लोग भी एआई के सॉल्यूशन एडॉप्ट कर रहे हैं, पर गार्बेज इन गार्बेज आउट, पहले वेस्टेज रिमूव नहीं करेंगे तो वहां पे वो डेटा तो वही चला जाएगा अंदर। तो ये जो है हमारी गवर्नमेंट ने, गुजरात ने एक्सेप्ट कर लिया सर। लास्ट महीने वी वेर इनवाइटेड टू ट्रेन एक लीन कंसल्टेंट, एक मुझे भी रोल दिया गया था, एक आईआईएम के प्रोफेसर थे, एंड देन वी ट्रेन्ड ऑल आवर ऑफिसर्स फ्रॉम जीएम अप टू ऑफिसर ऑफ डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर ऑफ गुजरात। 33 डिस्ट्रिक्ट है, उनके सब ऑफिसर को 3 दिन तक एक एक कैटेगरी में बुलाया, बोला लीन कराओ, तुम्हें तनख्वाह मिलती है, तुम्हें भगवान ने मौका दिया है कि इंडस्ट्री के साथ काम करना है, तो आप क्या करो, शाम को एक एक लीन क्लस्टर बना के आ जाओ, नहीं बनता है तो महीने में एक लीन क्लस्टर बनाओ हर डिस्ट्रिक्ट में, इसको नूक एंड कॉर्नर तक गुजरात में फैला दो। गुजरात शुड बी अ फ्रंट रनर इन ब्रिंगिंग दिस प्रैक्टिस ऑफ लीन थ्रू आउट द एमएसएमईज ऑफ गुजरात। सर ऐसा कुछ कुछ काम करते रहते हैं, और हमने यहाँ पे एक इसरो से टेक्नोलॉजी ली है सर। इसरो का काम तो बहुत करते हैं, बट अभी 20 कंपनीज को सैटेलाइट बनाने का लाइसेंस दिया गया है। तो इसरो फोरसाइटेडली गेव अस अ टेक्नोलॉजी कि हमारी ट्यूब पे जो काम करके वो सैटेलाइट के अंदर कर रहे थे, उन्होंने ये टेक्नोलॉजी हमें दी है कि भैया वी वांट टू बी इन आर&डी, हमारा मैंडेट भी वो है। अभी आप जो अकेले ट्यूब सप्लाई करते थे सर, आप मानोगे गगनयान के भी जितने ट्यूब है जहां पे शुभांशु शुक्ला जी जाने वाले हैं, वो ट्यूब का 100% मौका सिद्धि को मिला है, हम उसको सप्लाई कर चुके हैं अभी। पर अभी ये टेक्नोलॉजी आने से उनका मकसद ये है कि यहाँ 20 लोगों को जो लाइसेंस दिया गया है, उनको हमें बाहर नहीं भेजना है सामान लेने के लिए। जो आप इसरो को देते रहे हो, आप ये 20 सैटेलाइट वालों को भी देते रहो। तो ये देखते हुए, और देखो हर गवर्नमेंट में ये फैसिलिटी होती है, आपका भी मैं स्टडी कर रहा था, बट गुजरात में तो कोई भी आदमी 50 लाख रुपए तक की अगर टेक्नोलॉजी लाता है तो 65% पैसा उसको गवर्नमेंट देती है, और रॉयल्टी भी 2 साल तक की देती है, जो उसको देनी पड़ती है कहीं पे। मैंने भी पर्सनली ये एडवांटेज लिया हुआ है। तो टेक्नोलॉजी हमें इतनी कम कॉस्ट में गिर गई कि सर मेरा ये कहना है, हमने फिर ये बात लेके गए चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट के। मैंने बोला था कि मैं कुछ कंट्रीब्यूशन के बारे में थोड़ी बात करूंगा। हमने प्रेसिडेंट सर को बोला कि सर आपके ज्यादातर प्रोग्राम होते हैं वो प्रोग्राम के तौर पे होते हैं, वी वांट कंटिन्यूटी ऑफ एन इनिशिएटिव। तो उन्होंने 10 साल तक का इनिशिएटिव हाँ बोला, एंड देन वी हैव ओपनड अप टेक्नोलॉजी एक्सचेंज एंड एक्सपर्ट्स प्लेटफॉर्म, जिसके तहत हर महीने हम लोग CSIR को बोर्ड पे लाते हैं, NRDC को बोर्ड पे लाते हैं, प्लाज्मा इंस्टीट्यूट को बोर्ड पे लाते हैं, वहां लोगों को विजिट पे ले जाते हैं। तो अभी क्या हुआ है, लोग सोचने लगे हैं भाई टेक्नोलॉजी तो इतनी सस्ती मिल रही है, कॉस्ट इफेक्टिव, अपना तो 35% पैसा ही जाता है, और टेक्नोलॉजी हमारे कंट्री में इतनी ज्यादा है, ले आओ। क्योंकि हम कहते हैं 2047 के लिए 2030 तक हमें एमएसएमई में टेक्नोलॉजी जो है उसका एक लेवल अलग ले जाने की एक कोशिश जरूर करें। तो सर मेरी बात यहाँ पे खत्म होती है। मैं लास्ट चीज कह के मेरी बात को खत्म करता हूँ। हम लोग पहले फैक्ट्री में 24 घंटा पड़े रहते थे 1 साल तक। फिर मेरे घर पे लड़का आया तो भी मैं संडे को फैक्ट्री जाता था। फिर मेरे पड़ोस के अपने अनिल सिंह जी जैसे, वो मुस्कुराते रहते पूरे लेक्चर में, मैंने देखा है। तो वो आए,
बोले प्रशांत भाई एक प्रेशियस चीज गिफ्ट आपको दे दूं। मैंने बोला अरे आप तो जो गिफ्ट दोगे मेरे लिए प्रेशियस ही है, क्योंकि हम तो पड़ोसी कितने सालों से है। इसे आपका जो संडे है ना, SUNDAY, वो यू को थोड़ा ऊपर से जोड़ दो। मैं तो समझा नहीं था। बोले उसको SONDAY कर दो आप। SUNDAY है ना, उसको SONDAY कर दो। मैं बोला क्या बता रहे हो? बोले अभी आप संडे को बहुत इमरजेंसी होगी, पूरी फैक्ट्री जाना। मैं घर के अंदर गया, लैंडलाइन ही थी हमारे पास, पार्टनर को फोन किया, भैया कल से तू भी संडे को फैक्ट्री नहीं जाएगा। बोले क्यों? मैं बोला जब मैं नहीं जाने वाला हूं तो तू भी नहीं जाएगा। लेट अस एडॉप्ट सिस्टम्स ताकि हमारे बिना भी फैक्ट्री चले। और सबसे बड़ा योगदान किसका होता है सर बताऊं? पार्टनर्स की वाइफ का। वो ये नहीं देख रहे हमारी वाइफ कि कौन पहले फॉरेन गया। जापान जाना तो भी मुझे मेरे पार्टनर ने पहले भेजा। अमेरिका जाना था तो भी उसने मुझे पहले भेजा। देखो काइंड हार्ट जो होता है ना, वो काइंड हार्ट पार्टनर का नहीं होता है, उसकी वाइफ का होता है। हमारे पार्टनर्स की जो वाइफ है ना, वो बिजनेस को बनाती है। उनको ट्रिब्यूट के साथ सर मेरी बात मैं खत्म करता हूँ। नमस्कार, थैंक यू वेरी मच सर। Thank you so much, Mr. Prashant. That was just amazing. And I was just listening when you started. You saw that opportunity when the ISRO scientist came and visited you. They didn't even give you his card, but you knew you had done the homework, who those people are, and that's why you let them in, and you know that it's going to be featured. So you saw that opportunity, and I think everybody gets the opportunity. We just have to recognize that. And then looking all of that, I see that how you from your business you're going, how from a book holder to become a Chandrayaan holder. Chandrayaan में आपने बात नहीं की, but that's what I thought, suits you. Book holder to Chandrayaan holder. That's your journey, which I noticed. Network. You use all your network. That was very, very unique, and you worked on the unique project. You did not just go and jump into Me Too product. Nothing like that. You say we are going to do unique, and we are going to be the best. That was the vision which you started, and then uh, patent. You started. You realized your friend kind of educated you, and then continued education which you did in your department to your employees, and so that was very good. And then true entrepreneurship does not take no for an answer. That's who you are. You did not take no for an answer. You made that ditch. वो गड्ढा आपने नेगेटिव थॉट का गड्ढा बना दिया और उसी में सारे नेगेटिव थॉट उसमें डाल दिए. That was so good. And all you have is the positive thinking. Product, process, innovation. That is your mission. My God, what a good. We as a students, I tell all the students also, I'll share this, that for us actually, when we are student, whatever our product is, whatever our process is, that all should be innovation. We should be doing that. Then knowing what is ultimate goal, knowing, enjoying, doing it for the society, and making the money. Those are the four things which Mr. Prashant did that, and he totally focused on continuous improvement. He was not just sitting down. He just said, "How can I make it better? How can I make it go further?" And then he talked about that complaint. We talked about this customer voice. When you go to customer, listen to the customer. Don't sell. Just listen to the customer. And that's what he talked about. He said, "Complaint is a gold mine." Very well said, and that's what we talk about it. Customer voice, that is so important. And then stay ahead of competition. What he does, like remember the five things we studied in how to be
how to be a good entrepreneur, and that one of those things is do your plan in such a way that you are ahead of competition. That's what that's what Mr. Prashant does. And in the end, he talked about lean knowledge. Just keep on increasing that knowledge. You keep on increasing. And finally, he says, share your knowledge. Share your knowledge. And that's what he does every morning. He shares that with all his employees. So, students, we all need to kind of, whatever knowledge we have, we need to share with our classmate, our friends, who probably are struggling a little bit. Let's make, when you share that, not only you succeed, but also your whole society succeed. So, Mr. Prashant, that was so good. Thank you very much. And so I'm going to invite Professor Suresh Roy, who is a partner in this program, and he will be doing the QA session. So, Professor Suresh Roy, please go and take over, and I would like you to. Well, Prashant, what a story you have. These are the success stories which get students motivated. When you can do it, every student should think, yes, I can do it. And you have proved. And what you have done is the continuous process improvement. I myself associated with manufacturing for almost 40 years in the United States. And that is exactly what you have been doing, is to make sure that you produce a product with zero defects. You have to go back and identify an issue, go to the root cause of the problem, understand that, and make sure that it is never duplicated again. It should never come back again. Those are your corrective actions that are put into place. And that itself is one of the lean, actually, because lean is a word which says avoid wastage. And sir, that's very common in electronic companies that I've worked for, because without lean, it is very difficult to process. Other thing that you mentioned was, which I'm really glad that you took this initiative of talking to the least common factor, that is the operator. And you are 100% correct, because operators see this product day in and day out. They will notice the defect and say, there is something that is not right here. And if you make them a champion, if you hear their voice, which Prashant, which you heard, the chances are you're going to increase. Number one is their knowledge, because you have accepted that their contribution plays a very important role, not only in process improvement and the bottom line of your company, because whenever a defect is eliminated from the process, your bottom line increases, your profit increases, and that's what defect reduction or the lean is. Just the way you mentioned, I just want to put one more remark. Jab main gaya tha Korea in Samsung is a group of companies. All the companies are within one wall. That is in 86, that what I remember. अब तो इतनी बड़ी हो सकती है कि उनकी बाउंड्री बहुत बड़ी होगी. But प्रशांत भाई, वहां पर क्या होता था कि every Saturday in a big hall, it was a bazaar of rejects. What that means is, जो भी reject होता था Samsung group of industry में, वो सब उस hall में आता था. And the supplier of those components had to come and buy that product from there. It was a bazaar in which the supplier has to buy back all the defective product. इससे क्या हो रहा है? Now you're highlighting that there's a severe competition that is going on within the suppliers, and let's see who can improve the quality, because after all, that's a hall of shame, actually, when your product, you have to buy back your own product which have really failed. So ye cheez, and other thing that I learned from you is just Toyota actually they were in serious trouble
And that is when they went back to the operator and says, tell us what we need to do in order to improve. From that point, Toyota really took off. So Prashant bhai, very good example. I wish you had more time to come and talk to the students. Life is something that is most desirable. क्योंकि यहाँ पे हम लोग इधर से सुनते हैं उधर से निकल गया, लेकिन जब आप कॉलेज कैंपस में आते हैं, you bring all the vibrations along with you. You bring all that knowledge with you. You bring that experience and expertise, and students, that is what they want to hear good stories about. So thank you very much. And with that, if Anil bhai wants to say a few words, I would encourage all the students and professors to please raise your hand and ask questions, because these opportunities are very rare where you can ask a question to an expert. And Prashant is one of those experts. So please, whatever is in your mind, no question is too foolish to be not talked about. क्योंकि वो भी एक serious question होता है. So by the time Anil wants to say a few words, आप लोग please raise your hand and prepare the question that you want to talk about. Anil bhai sahab, it's all yours. Thanks, Suresh bhai. Again, it was a pleasure to बड़ी खुशी हुई प्रशांत भाई इस तरह से क्या कहते हैं साधारण भाषा में समूह को अपना स्टोरी जो कि अमेजिंग स्टोरी है. एंड आई वाज सरप्राइज टू लर्न कि उन्होंने जैसा बताया कि शुरू में इनके सिर्फ 10,000 रुपये थे इनके पास में, उसके बाद उन्होंने इस तरह का स्टेप लिया और इतने अच्छे तरह से नए नए प्रोडक्ट को करते रहे, बढ़ाते रहे. I don't know, I've been away from the country for last almost 55 years now. मैं अभी लॉस एंजल्स में रह रहा हूँ. I don't know whether that kind of I'm sure opportunities have increased manyfold, what I hear, and in the process that Prime Minister Modi has started कि 1947 में कंट्री को विकसित भारत के रूप में बनाया जाएगा. तो I believe that उसी तरह का जो 10,000 से आप इतने आगे बढ़ाएं, तो still there are opportunities कि you don't need to have a big capital to start a business, and so long you are dedicated and have a good partner, reliable partner, and I found that your talk very illuminating, and hope the students will get the gist of your talk and take it from here. And thanks again, Prashant bhai, appreciate it. I'd like to point out one thing, Prashant. During your lecture, there was one word that you used. The word was geek, G-E-E-K, geek. Sir, I'm wearing the geek hat right now. And if I happen to meet you in India, I'll carry one of those geek hats and give it to you. Thank you. Yeah. Professor Suresh, there's a question on that and on the chat. So I would really encourage everyone to raise your hand and ask question, because we might not be able to translate everything properly. But the question is, sir, in your journey as an entrepreneur, and this goes to Prashant, this is for you. How did you handle situation of sudden regulatory or legal pressure, and what lesson can students learn about navigating challenges? Just say, you did mention that at some point you were under pressure. How did you handle that? That's the question the student wants to know. Yeah. लीगल और रेगुलेटरी जो बात है उसमें एक आध बार ऐसा हुआ था कि हम लोग फैक्ट्री में बैठे थे, एक्साइज ऑफिसर आए और बोले हमें कुछ कुछ टोकन पे भी कुछ दीजिए. हम तो प्रोफेसर जैसे हैं, हमने बोला देखिए भैया, मैं कुछ गलत नहीं करता हूँ, और कुछ गलती हो गई है तो मैं सरकार में पैसा भर दूंगा, उसका जो टेक्निकल मेरा कोई फॉल्ट है तो भर दूंगा. बट और बहुत विनय से बोला था, बट उनका कहना था भाई अगर तू नहीं करेगा तो मैं तुम्हारे पे कुछ ना कुछ डाल दूंगा. तो शोकेस नोटिस आ गई. शोकेस नोटिस जो आई उसमें मेरे टर्नओवर से ज्यादा पैसा उन्होंने मांगा था.
शोकेस नोटिस में। बट सर आपकी देखिए विद्या जो है ना बहुत काम लगती है। मेरे बायोडाटा में तो नहीं लिखा है, बट इंसिडेंटली मैंने जब जॉब करी तब मैंने साथ साथ में लॉ भी किया था टैक्सेशन में। और लॉ मैंने टैक्सेशन में इसलिए किया था कि अल्टीमेटली मेरा पर्पस ये था कि मैं जब बिजनेस करूं तो मुझे एटलीस्ट पता लगे कि मैं अच्छी तरह से ये करता हूं, है ना। तो मैंने 2-3 दिन रात दिन बुक्स को स्टडी किया, फिर हमारे एक्साइज कंसल्टेंट के पास गया, एंड देन वी डिसाइडेड दैट वी विल फाइट इट आउट, है ना। तो फाइट इट आउट का मतलब झगड़ा नहीं मैं कह रहा हूं, मतलब वी विल से दैट वॉट एवर अवर स्टैंड इज। और आपने जो भी शोकॉस नोटिस निकाली है उसमें वी विल सबमिट अवर पेपर्स। अच्छा करते करते ये हो गया कि असिस्टेंट कमिश्नर वो क्वाजी जुडिशियल अथॉरिटी होती है ऐसे किस्सों में, तो उनके पास हम गए, वी रिप्रेजेंटेड, उसको कन्विंसिंग लगा, और जब तक वो वर्डिक्ट देते उनकी ट्रांसफर हो गई। दूसरे आ गए, दूसरे को फिर से स्टोरी रिपीट करी सर, तो उसकी भी ट्रांसफर हो गई। तीसरे आए वो मैकेनिकल इंजीनियर थे, और उनको मैंने बोला कि सर 2 की तो ट्रांसफर हो चुकी है, आपके डिपार्टमेंट में कई बार ये जो अभी हम वुका वर्ल्ड कहते हैं बट उस टाइम पे भी वैसा था। तो मैंने बोला सर आप अगर चाहो तो एक बार देख लो, फैक्ट्री भी यूनिक है ना। उसको बहुत पसंद आया, वो फैक्ट्री आए और शाम को जाके हमारी फेवर में ऑर्डर लिख दिया कि भैया ये लोग सही है, मैंने पूरे रिकॉर्ड वेरीफाई कर दिए, है ना। शाहरुख खान का एक डायलॉग है, तुम पूरी चीज को कोई चीज को अगर पूरे दिल से चाहते हो तो पूरी कायनात भी तुम्हें उसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। नॉट सो रिलेवेंट, बट ऐसा आदमी भगवान ने भेजा असिस्टेंट कमिश्नर के फॉर्म में, और फिर डिपार्टमेंट में नौबत लग गई कि ये पटेल गांधी की जो जोड़ी है ना उसके ऊपर कभी भी कोई इल्जाम लगाया ना तुम्हारी ट्रांसफर हो जाएगी भैया। Well, Prashant, I just want to re-emphasize जो आपने बताया था, you had 5 practices, and that was your first practice, is to do your duty in the right way and not take anything that is that's beyond general practices. And congratulations to you. And I'm sure आपने जो रास्ता दिखाया है, हम लोग के बच्चों को थोड़ी उसमें राहत जरूर मिली होगी, because good things always propagate, and those propagation waves will reach the country saying that let's do it the first time. Yeah. Okay. Thank you. Next question. Okay, let's go to the next question. How did you raise financing for the major projects? You said about bank loans. Do you have access to capital market? How is the environment for that now? Basically, आपको कैसे loan मिला? Was it too difficult? And how did you manage all that? मैं जानता हूँ you started with 5,000 and you had a good product. अगर अच्छा product होगा, आपको funding मिलेगी, and that what happened. But explain in your own words, please. या सर हम लोग कैपिटल मार्केट में कभी नहीं गए हैं, और कैपिटल मार्केट पिछले थोड़े साल से ही वो ऐसे नौबत पे आया कि जहाँ पे एसएमई एक्सचेंज खुला है और बहुत सी चीज़ें हो रही है। मैं भी उसका काफ़ी स्टडी करता रहता हूँ, एंड वी आर एडवाइज ऑल्सो एट दिस स्टेज कि यू शुड यूटिलाइज इट। अभी थोड़े पिछले 4-5 साल से हमने अभी तक जो भी फाइनेंस यूज़ किया है 95% हमने बैंक का या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का ही फाइनेंस लिया है। वर्किंग कैपिटल के लिए बैंक का, और कैपिटल इक्विपमेंट के लिए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का। बट यू विल बी वेरी वेरी हैप्पी टू नो कि देखिए हम लोग आज कहते हैं कि मोदी जी आए यहाँ पे 2014 में, गुजरात में 2002 में हुआ है, बट ये बात नहीं है। यहाँ पे गुजरात का मैं प्रशंसा करते हुए कहता हूँ कि मैंने जो फर्स्ट लोन ली थी उसमें एक ही सिटिंग में हमारा उन्होंने असेसमेंट कर दिया था। बट व्हाट वी डिड वाज कि मेरा जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट है वो यहाँ पे जिटको करके एक संस्था है,
गुजरात इंडस्ट्रियल टेक्निकल कंसल्टेंसी ऑर्गेनाइजेशन, वो 5,000 रुपया लेते थे। मैंने सिस्टमेटिकली, मैं भी बना सकता था क्योंकि मैंने बहुत MBA में बनाए थे फला, बट मैंने उनसे बनवाया था बिकॉज लेट द अदर आइज ऑल्सो मूव ऑन दिस प्रोजेक्ट। तो पहली उसमें उन्होंने ये हमें सैंक्शन कर दिया था। तब क्या था कि हमारे वहां पे NES, न्यू एंटरप्रेन्योर स्कीम करके एक स्कीम गवर्नमेंट ने निकाली थी। तो तब स्टार्टअप वर्ड था ही नहीं, बट उन्होंने बहुत लिबरल टर्म्स पे, और आप मानोगे बिकॉज वी स्टडी एवरी स्कीम ऑफ द गवर्नमेंट, मैंने 0 प्रोजेक्ट कॉस्ट पे पूरा प्लानिंग किया था। जो हमें सेल्स टैक्स डिफरमेंट मिलता है, इलेक्ट्रिसिटी एग्जेम्पशन मिलता है, इनकम टैक्स एग्जेम्पशन मिलता है, ऐसी सब चीजों की नेट प्रेजेंट वैल्यू निकाली, और सब्सिडी जो मिलती थी उसकी वैल्यू और मेरे प्रोजेक्ट कॉस्ट, इट वाज अ यू नो नेट प्रेजेंट वैल्यू उन सब बेनिफिट की, बेनिफिट तो हमें कई मिले बट उसकी उस टाइम की वैल्यू 0 हो जाती थी। तो हमने उसका पूरा स्टडी करके, 1-2 दिन जरूर लगते सर ये पूरे पेपर में छानबीन करना, फिर गवर्नमेंट ऑफिसर को मिलके इसको और डेप्थ में समझना, बट इट हैपेंड। और दूसरा, मैं एक एग्जांपल देके इसको मतलब क्लोज करता हूँ कि कुछ बैलेंस शीट हमारे अच्छे नहीं भी थे, क्योंकि मैंने जब ये पर्टिकुलरली एक मैन पोर्टेबल एंटी टैंक मिसाइल, हमारी सबसे लाइटेस्ट मैन पोर्टेबल मिसाइल का कवर हमने डेवलप किया था ना, उस टाइम पे सरकार ने तो, DRDO ने तो मुझे 20 लाख दिया, बट वी वेर कमिटेड, क्योंकि उन्होंने हमें ये बोला था कि भैया ये मोदी जी का विजन है कि वर्ल्ड की लाइटेस्ट मैन पोर्टेबल एंटी टैंक मिसाइल हमें बनानी है, जो सैनिक छोड़ते 1-1.5 किलोमीटर तक जाती है ट्रेजेक्टरी पर। तो हमारा खर्च बहुत हो गया था, रेशियोज नहीं मिल रहे थे। तो कालूपुर बैंक जो हमारे यहाँ पे बैंकर है, उन्होंने बुलाया, समझाया। मैंने बोला सर एक काम करो, आपको मुझे पैसा नहीं देना है तो चिंता मत करो, आप एक काम करो, आप मेरी फैक्ट्री पे चले जाओ, मैं नहीं आऊंगा, मेरे पार्टनर होंगे। वो गए, और जाते जाते उनका ध्यान पड़ गया कि यहाँ पे एक वो ग्रेवयार्ड भी है। ग्रेवयार्ड में उन्होंने चिट्ठी डाल दी, फिर आके बोल किया प्रशांत आजा, क्या था? बोला बोलो सर। बोले कितना पैसा चाहिए? बोला ठीक है, बस बात खत्म हो गई। आप जो अभी रेशियोज के अलावा हमारा चेहरा भी देखने लगे, हमारी प्रोडक्ट भी देखने लगे, दैट इज गुड ऑन योर पार्ट सर। तो कभी बैंक ने, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने हमें पैसे में कमी आने नहीं दी है यहाँ पे। और लास्ट चीज बताऊं सर, मुझे 1 यूनिट का लोन लिया था पहले, फिर दूसरा यूनिट डालना था, अचानक जल्दी से अपॉर्चुनिटी आ गई 3 साल में। तो गवर्नमेंट ने स्कीम निकाली थी कि भैया जिस आदमी ने हर हफ्ता टाइम पे भरा है उसको लोन लेने के लिए आना नहीं पड़ेगा। दैट वाज इन 91। उसकी ऑफिस में हमारे ऑफिसर जाएंगे एंड दे विल गेट ओनली 1 आवर टू सैंक्शन द लोन। सर मेरी ऑफिस में आके उन्होंने लोन सैंक्शन किया था सर। इतना प्रोएक्टिव एटमॉस्फेयर है यहाँ पे। एनीवे, So I see a question from Shivam Raj, and he says, "Sir, as a BTech student aspiring to start a tech-based startup, my biggest challenge is translating classroom knowledge into real-world product. Sir, could you share a specific approach of or mindset you followed to ensure your startup consistently delivered high quality solution to organization like ISRO, BARC, and the other, despite initial resources and experience constraint?" ये वैसे बहुत रिलेवेंट सवाल है। हाँ, देखिए, मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग जब करी तो एल्यूमिनियम का एक ही चैप्टर हमारे मेटलर्जी के कोर्स में आता था, और वो भी मेटलर्जी में हम लोग ज्यादातर लोग तो नींद आ जाती थी, क्योंकि वो जो फंडामेंटल्स है ना, वो मगज में जाने के लिए वो बहुत दिक्कतें आती थी। और एल्यूमिनियम का एक ही 4 पेज का चैप्टर था। जब हमने बिजनेस सिलेक्ट किया तो हमने तो ये मेटल सिलेक्ट कर ली है ना, पूरी जो ब्लड वेसल्स है उसमें अभी एल्यूमिनियम बह रहा है, पर उसके लिए हमें क्या करना पड़ा, जो बिजनेस सिलेक्ट किया उसको शुरू करने के पहले
वी नीड लॉट ऑफ लिटरेचर रिव्यू। आज तो आपको एआई में करीब 10 मिनट में जो चाहो वो निकल आएगा, बट उस टाइम पे वो दिक्कतें नहीं थी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि हर समय की अपनी अपनी ये रहती है। बट वी स्टडीड अ लॉट, मतलब मेरे यहाँ पे मेरे सामने ही अभी यहाँ पे पूरी लाइब्रेरी है जहाँ पे जितने जो जो रिसोर्सेज मुझे चाहिए, मेरे पास करीब 500 जितने रिसर्च पेपर है, मैंने अलग अलग सोर्स से निकाले हैं, और उन रिसर्च पेपर में जो रिलेवेंट चीज होती है उसको हम लोग हाईलाइट करके रखते हैं कि भाई ये चीज जो है ना हमें काम में लगेगी। तो एक बार हमारा लाइन सिलेक्शन हो जाने के बाद अल्टीमेटली व्हाट वी हैव डन, वी हैव गॉन फॉर कंटिन्यूइंग एजुकेशन। मतलब हर महीने मैं और मेरे पार्टनर भी, हम लोग कम से कम 3 दिन जो है हमारे, मतलब 10% ऑफ अवर टाइम वी डिवोट फॉर अवर अपग्रेडेशन। मैं वेरी रिसेंटली लास्ट वीक ही मैं एआई फॉर मतलब एजेंटिक एआई के क्लास में गया था, क्योंकि अभी हमें भी उसको यूज करना है। अगर मैं नहीं जाऊंगा तो हाउ डू आई गाइड माई पीपल। तो भैया आपका जो सवाल है उसमें जो भी लाइन सिलेक्ट करते हैं उसका जो भी नॉलेज है, नंबर 1 लिटरेचर से लेना पड़ेगा। दूसरा देखिए, इफ यू अलाउ मी रमेश जी 2-3 मिनट्स आई विल टेल यू Sure. कि हम लोग ने क्या किया है। वी आर अटैच्ड टू सेवरल टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूशंस। आईआईटी गांधीनगर जो है यहाँ पे, उसके साथ हमारे कोलैबोरेटिव रिसर्च प्रोजेक्ट 11 साल से चल रहे हैं। नाउ दैट हेल्प्स अस टू अपग्रेड अवर नॉलेज कंटिन्यूअसली। यहाँ पे राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी है, हेडक्वार्टर यहाँ पे है, हम लोग उनसे जुड़ गए हैं। यहाँ पे आईआईटी रैम करके एक इंजीनियरिंग कॉलेज है, उनके एमटेक के बच्चे को हम प्रोजेक्ट देते हैं, बट उसके वजह से उनके प्रोफेसर से हमारा इंटरेक्शन चालू ही चालू रहता है। हम लोग नई नई चीज समझते सीखते रहते हैं। तो अल्टीमेट थिंग इज कि स्टेक होल्डर्स जो है हमारी नॉलेज इकोनॉमी के, उसके साथ कंटिन्यूअस बेसिस पे जुड़े रहना। एंड देन वी अटेंड सेवरल नेशनल इंटरनेशनल सेमिनार्स। हम लोग उसमें पेपर प्रेजेंट करने के लिए जाते हैं, आज तक कई प्रेजेंट पेपर, बट जब जाते हैं तो फायदा ये होता है कि यू गेन मोर देन व्हाट यू डिलीवर। अभी जैसे मुझे सुरेश सर से क्लू मिल गया है ना, उन्होंने ये जो सैटरडे शॉप की बात करी ना, आज मैंने जो जो भी बात करी उससे ज्यादा मैं सीख के जा रहा हूँ यहाँ से। शायद मेरे वहां इम्प्लीमेंट हो जाएगा इन अवर ओन फॉर्म, मतलब जो हमारे सुटेबल फॉर्म होंगे सुरेश जी वो अभी इम्प्लीमेंट कर लेंगे हम लोग। तो यही बात है ओवर फ्रॉम माय साइड। Prashant, I'd like to ask you a question. कि मेरे ख्याल से there are lot of things that is available to the students at this time. Yes. But unfortunately, this is not trickling down. आज अगर कॉलेज में एक कोर्स ये भी पढ़ाया जाए कि गवर्नमेंट क्या क्या एड देती है और कैसे कैसे फैसिलिटेट करती है, जैसे आपने बताया कि यू कैन गो हैड एंड टेक किसी का भी पैटर्न आप ले लीजिए एंड गवर्नमेंट पेज 50% ऑफ इट, लेकिन किसी को मालूम नहीं है। आई मीन इफ ऑल ऑफ दिस इज बीइंग प्रैक्टिस्ड इन कॉलेजेस, द चांसेस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप इज गोइंग टू राइज ट्रेमेंडसली। तो ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? या सर, ये आपने बहुत बहुत बड़ी चीज बताई है। मैंने टेक्नोलॉजी का 60% लिया था, अभी गवर्नमेंट 65 दे रही है, बट पेटेंट का मैं 75% ले रहा हूँ सर। मेरी गवर्नमेंट जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी ये देती है। अभी क्या है, जो भी हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको आपके मतलब झारखंड की भी स्टेट पॉलिसी है एंड सेंट्रल गवर्नमेंट की भी पॉलिसी है, यू कैन नॉट टेक इट फ्रॉम बोथ। और उनके ये टर्म्स है कि अगर आप दोनों से लेते हो देन इट शुड नॉट एक्सीड द वैल्यू ऑफ द टोटल थिंग दैट यू हैव इन्वेस्टेड। तो वो भी पॉसिबल है। अभी क्या है, इसके लिए तो कॉलेजेस जो है वो जो अपने वहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों की अथॉरिटी को हर 6 महीने एक बार अगर बुलाती है, एंड देन उसके साथ में
जो एक्सपीरियंस्ड एंटरप्रेन्योर्स होते हैं जो ये लाभ लेते हैं, जैसे मैं गवर्नमेंट की कम से कम आज भी कम से कम 10 एक स्कीम का लाभ ले रहा हूं मैं। और आप मानोगे हम तो क्या करते हैं कि जैसे हम पेटेंट की लेने गए तो उसने बताया भाई प्रोडक्ट पेटेंट का मिलेगा, तेरी ये पेटेंट तो प्रोसेस पेटेंट है। मैंने बोला सर आपकी कमेटी के सामने हमें 3 मिनट दीजिए, 20 लोग होते हैं कमेटी में, ये पूरी गवर्नमेंट की कमेटी। एंड देन आई वेंट एंड स्पोक अबाउट इट। आई सेड कि प्रोडक्ट पेटेंट का एक महत्व है बट प्रोसेस पेटेंट का एक और डिफरेंट महत्व है। तो आपको कैसे ये लगा कि आपने ये अभी नहीं डाला है? और उन्होंने बोला कि बैक इफेक्ट से वी आर नाउ इनकॉर्पोरेटिंग प्रोसेस पेटेंट, और नई पॉलिसी में लिख के आ गया कि प्रोसेस पेटेंट्स आर आल्सो अलाउड। और एक चीज मैंने बोला सर मैं पेटेंट लेता हूं, आप तो मुझे गवर्नमेंट की फी, मेरे कंसल्टेंट की फी देते हो, बट वो तो 60-70 हजार, बहुत बहुत तो इंटरनेशनल पेटेंट में मेरा 5-6 लाख रुपया होता है, उसका 75% देते हो, बट उसकी रिसर्च में मैं 3 साल 4 साल 6 साल देता हूँ, वहां पे हम कुछ इक्विपमेंट्स लेने पड़ते, उसका क्या? सर नई पॉलिसी में गवर्नमेंट ने क्लियर डाल दिया उसके रिलेटेड जो इक्विपमेंट लेते हैं उस पे भी 75% मिलेगा। मैंने जिक्र इसलिए किया इस चीजों का कि सर अगर कॉलेजेस में ये प्रोविजन होता है फॉर सेटिंग अप 3-4 आवर्स लेक्चर, तो पहले तो उनको ऊपर से चला जाएगा, उनको लगेगा भाई ये हमारे काम का कहाँ पे है। बट जब जो जो बच्चे हैं जो कुछ काम अपने आप करना चाहते हैं वो तो अपना पकड़ लेंगे सर। और फ्रॉम माय साइड तो इसीलिए प्रशांत की जैसे यू आर वर्किंग विद योर ओन इंस्टीट्यूट जिसे आप पास किए, बिकॉज यू हैव अ सॉफ्ट कॉर्नर फॉर योर इंस्टीट्यूट. You know, I have a soft corner for my institute, and I'm sure Professor Ramesh also has a soft corner for his institute. लेकिन because you have so much experience than us, आप जो अपने कॉलेज में जो इम्प्लीमेंट करेंगे उसको हम लोग रिप्लिकेट करना चाहते हैं. That's all, you know, so that every student of every institute in India knows what are the grants that they can get from the government, what aid they can get from government, how do they get into this entrepreneurship right from college days. Anyway, एक और क्वेश्चन है आपके लिए सर. For students who are confused between pursuing a job or starting a startup, what would you advise? सर हमारे गुजरात में तो हर बच्चा बाहर निकलता है वो सोचता है अपना कुछ करे, पहली बात। और देखिए जॉब भी गलत नहीं है जब तक हम जॉब ऐसी करें कि हम ओनर है। हमने भी जो जॉब करी थी, मैं 6 लेयर दूर था चेयरमैन से, मतलब इट वाज अ ब्लू चिप कंपनी गुजरात स्टील ट्यूब करके, जो टाटा से भी मतलब उस लेवल पे काम करती थी, पर्टिकुलरली अपने फील्ड में स्टील ट्यूब में। बट हम काम करते थे ना, तो मैंने पहले दिन इंटरव्यू में ही बोला था सर मैं बिजनेस करने वाला हूँ, तो आपके वहां पे मैं जो भी काम करूंगा इट इज लाइक माई ओन बिजनेस। तो जॉब करना कोई गलत चीज किसी के लिए नहीं है, वो एटीट्यूड पे होता है ना। अगर बट मैं इतना जरूर कहूंगा सर कि अगर आज जो एटमॉस्फेयर है उसमें अगर आदमी अपना बिजनेस करता है तो उसकी क्रिएटिविटी जो है, उसकी कंट्रीब्यूशन टू द सोसाइटी है। और देखिए उनके बच्चे भी, मैं एग्जांपल देता हूँ कि मेरे लड़के को जब मैं सैटेलाइट के 100 फुट ऊंचे 29 मीटर अप लेके गया और हाथ में लगा रहा था, वो भी लगा रहा था। मुझे लाइफ में उसको बोलने की जरूरत नहीं पड़ी कि भैया तू पढ़, अच्छा पढ़। वो एनर्जी मैनेजमेंट में पीएचडी होके बाहर निकल गया सर, बात खत्म है ना, क्योंकि बच्चे को पता लग गया कि पिताजी कुछ अच्छा काम करते हैं। तो अगर कोई आदमी अपना भी करता है ना, तो मैं प्रिफर करूंगा कि अभी तो हमें ये करना चाहिए। I just want to add what you have said कि अभी थोड़े दिन पहले मैंने एक स्लाइड दिखाया to the students that entrepreneurship is the heartbeat of Silicon Valley. Silicon Valley का एक employee thinks in terms of entrepreneurship, but that comes after he gains experience, expertise and knowledge. अगर
अगर स्टूडेंट के पास एक ब्रिलियंट आइडिया है, you don't have to wait for years to do that. क्योंकि you start that and there will be good people coming to you, but have a good networking with you. People who can advise you the right way of doing things. Up at the college level, you may not understand what is the meaning of zero defect. But when you talk to me or when you talk to Prashantji and many others, or you talk to Professor Ramesh, you come to know through our experience, how can you achieve zero defect? Just the way we are teaching entrepreneurship today. पहले तो था नहीं, but all of a sudden we are becoming more and more enlightened. And when people like you, Prashant, come and talk to the students, आप देखिए कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, and these are all wonderful questions. Next question. I don't think this is the right question, but how your hardworking company employees have a quality of life? Can you आपके जो repeat, sir? employees हैं, they must be working very hard. उनकी quality of life कैसी? या सर, इन्होंने बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा है। मैंने एक एग्जांपल में काफ़ी चीज़ बता दी थी, संडे वाला एग्जांपल से, है ना। मैं हर रोज 6:30 बजे घर चला जाता हूँ, एंड करंट रिसेंटली आई हैव अ ग्रैंड डॉटर, तो मैं 5:45 बजे निकल जाता हूँ, बिकॉज आई एंजॉय माई डेज ऑल्सो। उसने मुझे इफिशिएंट भी बना दिया, ग्रैंड डॉटर ने, क्योंकि नाउ आई हैव टू कंप्रेस माय वर्क बाय 5:45 आई हैव टू कंप्लीट एवरीथिंग। और हमारे वहाँ पे इंस्ट्रक्शन है सबको क्लियरली ऑफिस में कि भैया काम इफिशिएंट करो, 6:30 बजे हमारी ऑफिस बंद हो जाएगी। इंसिडेंटली मेरे जो साहब थे, गुजरात स्टेट ट्यूब में मैं जॉब करता था, जिनकी अंगली पकड़ के मैं डॉक पे जाता था, मसगांव डॉक में फलाना सब सीखने, बजाज ऑटो में, बजाज टेम्पो, टेल्को में 3-4 साल, वो मेरे वहां ज्वाइन हो गए थे। Now he is 84 years and he is still with us. He is sitting on the first floor of my office where I am sitting now. Now he had a habit of sitting late. I requested him, सर आप मत बैठो, इसलिए मत बैठो कि मेरा जो ऑफिस असिस्टेंट है उसको भी तो घर पे जाना है। और हमारे लोग जो है सर, तो वर्क लाइफ बैलेंस की जो बात है, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे लोग टाइम पे घर चले जाए। और उसके लिए इतनी ज्यादा ट्रेनिंग यहाँ पे होती है, हमारी अकेली नहीं, आदमी की तो बहुत होती है। हमने, आप मानोगे, इवन कोरोना में, जिस दिन कोरोना आया तीसरे दिन हमने डिजाइन कर दिया कि हमारे हर कर्मयोगी को मोबाइल पे हर रोज सेफ्टी रिलेटेड, 5S रिलेटेड वीडियोस बताई जाएगी। मैंने तो फ्रेंड सर्कल को फोन कर दिया, अभी तुम्हारी वीडियोस भेज दो लीन वाले को, एंड देन हम लोग उसका प्रसारण करते थे। हमारा वहां पे ज्यादातर लोग, स्टाफ जो है, लीन सिक्स सिग्मा ग्रीन बेल्ट 2 बार हुए हैं। क्यों? कि एक बार हमने थियोरेटिकल किया, दूसरी बार प्रोजेक्ट बेस किया। तो ये करने से जो है अल्टीमेटली हमारा कार्य जो है, और हम कहते हैं उतना काम लो भैया जितना हमारी टाइम में हम खत्म कर पाए। और फ्रॉम मैसेज। And Prashant, I just want to add, जो आप बता रहे हो ना, कि when we go to our suppliers and we do audit, so one part of the audit is to make sure कि जो employees हैं, they are well treated and well taken care of by organization. तो जब मैं चाइना में जब ऑडिट करने जाता हूँ, this is one of the items that we seriously review it. We go to the dorms, we talk to the people. उनको शाम में जाके देखते हैं whether they are able to get the proper entertainment and the food. Yeah. So for large corporations, this is a given fact that this happens. So we'll take. I'm going to read 2 more questions and that's it. Then we'll end it because I know we are taking a lot of your time, and so I'll just read those questions. Last 2, the previous question which was asked, that was from Mr. Gupta and Mr. Shivam Raj, and these 2 questions are from Sumit and also Anand Kumar. So the question is, 2 questions are, sir, how do you bring the best out of your team? How do you communicate such that everyone can achieve their full potential, and how they have their mastery
in the work? That's the first question. And the last question is that how do you handle failure in early startup? That is from Ajit Kumar. And of course, do your hard work, that already answers. So just these two questions, please. या मुझे थोड़ा सा थ्रेड फिर से पकड़ना पड़ेगा. हाँ, फिर से सेकंड वाला पकड़. क्वेश्चन, हाँ प्लीज सर. Yeah. How do you bring the best out of your team? या ओके सर. या दैट इज दैट. Yeah. सर क्योंकि हमारे वहाँ पे वी आर नॉट अ बिग ऑर्गेनाइजेशन, हमारी फैमिली करीब 115 लोगों की है टोटल, है ना. तो करीब करीब हर पर्सन को हम एक दूसरे को जानते हैं, है ना. करीब हर आदमी के घर पे मैं गया हूँ, क्योंकि मैं तो शुरू में तो झाड़ पे से वर्कर को उठा के कर्मयोगी को लेके आता था, भैया काम आ जाए मेरे पे, है ना. तो क्या है, छोटे ऑर्गेनाइजेशन में ये थोड़ा पॉसिबल भी होता है कि बिकॉज यू नो एवरीबडी. एंड देन उनमें से बेस्ट बाहर लाने के मैंने 3 चीज शेयर किए थे, बट मैं उसको रिपीट नहीं करूंगा यहाँ पे. बट मैं बताता हूँ कि हमारे जो कर्मयोगी के मीटिंग होते हैं उसमें इतने बढ़िया सजेशन आते हैं. जैसे अभी जनवरी में लास्ट क्वार्टर की मीटिंग हुई, तो एक कारीगर ने बोला कि सर आपने तम्बाकू गुटखा छुड़ाया था 100% लोगों का, बट अभी हमारे ध्यान में आ गया है कि यूरिनल में कुछ ना कुछ पैकेट दिखाई देते हैं. तो उसने नाम नहीं दिया. तो व्हाट वी डिड वाज, हमने उन्हीं लोगों को वॉलंटियर बना दिया, मॉनिटर बना दिया, है ना, जो हमें पता लगा कि वो लोग लेना शुरू किए हैं. क्योंकि क्या कुछ ना कुछ नए लोग आते हैं, दे डू नॉट अंडरस्टैंड द वैल्यू. मेरे पार्टनर का क्या है, 1 लाख रुपया कमाएगा नहीं तो चलेगा, बट एक आदमी का अगर गुटखा छुड़ा दिया ना तो उसको बहुत खुशी होती है ना. तो बट ये चीज अभी डाइल्यूट हो रही थी, तो देन विद इन दैट ओनली वी ट्राइड इट. अभी क्या है, उनको जो प्रोडक्टिविटी का, बिकॉज नाउ वी आर ट्रिपलिंग अवर टर्नओवर, है ना, थ्रू एक्सेलरेट प्रोग्राम. ये जो वाधवानी वाले जो है, डॉक्टर उमेश वाधवानी सर की टीम यहाँ पे है, वो हमें गाइड कर रही है, फोकस करा रही है और बढ़िया. तो वो करना है तो मैं पिछले हर वीक से 3 घंटा हमारे रिलेवेंट लोगों के साथ बैठता हूँ. फर्स्ट वी ट्राई टू शेयर कि देखो ये पॉसिबिलिटी है, हमें गाइड किया गया है, क्या करना. अभी जब हम उनके साथ ये बात करते हैं ना, इतनी बढ़िया बढ़िया चीजें उनके माइंड से आ रही है, एंड देन दे आर बीइंग इम्प्लीमेंटेड. तो क्या हो रहा है कि जब उनकी कही गई बात को पहले प्रायोरिटी देके इम्प्लीमेंट किया जाता है, तो इट इज बिकमिंग देयर ओन. और आप मानोगे, हमारे वहाँ जो एम्प्लॉइज है, एक आदमी वाउचर लिखने आया था. ही इज नॉट इवन, उसका आईटीआई खत्म नहीं हुआ था. वो आदमी हमारे एल्यूमिनियम वाले प्लांट का आज हेड है. आईआईटी के पोस्ट ग्रेजुएट सर भी हमारे यहाँ आते हैं, 25 साल से जुड़े हुए हमारे साथ. बट दैट पर्सन हु इज ओनली ITI फेल इज हेड ऑफ आवर प्लांट, और 35 साल से हमारे साथ. मतलब यहाँ आदमी अंदर आ जाता है, बाहर नहीं जाता है सर, बाहर नहीं जाता है ना. तो यहाँ पे क्या है, बिकॉज देयर व्यूज आर बीइंग गिवन रिस्पेक्ट एंड बीइंग इम्प्लीमेंटेड. दिखाने को रिस्पेक्ट नहीं है, बीइंग इम्प्लीमेंटेड. तब भी क्या होता है, व्हेन आई ड्रीम टुगेदर आई एम अलोन, बट व्हेन वी ड्रीम टुगेदर इट हैपेंस. तो यहाँ पे हमारी कोशिश ये होती है कि हर आदमी का इन्वॉल्वमेंट बात में आ जाए. और फ्रॉम माय साइड फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन. So the second part is, how do you handle failure in early startup? या सर, ये मैं आपको बताऊं, जब समझो 4 दिन पहले ही हम लोग जब राजकोट में थे, ये प्राइड ऑफ गुजरात अवार्ड लेने, फेलिसिटेशन लेने गए थे, तो जैसे ही वो मिला, फिर स्टार्टअप वाले बहुत बच्चे हमारे पास आ गए. एक बच्चे आए, उन्होंने बोला कि सर मैंने ऐसे ड्रोन बना रहा हूं मैं आई क्रिएट में काम करते हुए, कि जो इंटरसेप्ट करने का काम करता है, बट सर 5 साल से मजूरी कर रहे हैं, अभी हमें
कोई भी टेंडर में हम लोग डालते हैं, L1 में हम नहीं आते हैं और हमें काम नहीं मिलता है. Now it's a big failure. They were so much depressed, है ना. तो मेरा उनको मतलब whether I was right or wrong I am not aware, but I was telling him कि भाई देखिए हमारा बिजनेस एक्सपीरियंस ये कहता है कि हमें जो रोटी सब्जी जो है ना वो एक बिजनेस देता है, और हमें जो बटर और मिठाई जो है ना वो कोई अंदर से और प्रोडक्ट्स देती है. अगर आप जो है ये इतना बढ़िया आपने इंटरसेप्ट करने वाला ड्रोन, मतलब जैसे हम लोग मिसाइल के लिए चेफ कार्ट्रिज के ट्यूब बनाते हैं, है ना, काउंटर मेजर, है ना, तो आप ये चीज बना रहे हो, यू आर डूइंग सच अ बिग सर्विस टू द नेशन. आप क्या कर सकते हो कि आप प्राइवेट जो प्लांट्स है, वेरी इंपॉर्टेंट प्लांट, जैसे रिलायंस का प्लांट है जामनगर का, नाउ दे हैव अ वेरी बिग थ्रेट फ्रॉम पाकिस्तान, क्योंकि वो तो दूर ही नहीं है पाकिस्तान से, है ना. उस तरह के जितने जितने बड़े यूनिट है उन लोगों को अंदर एक दो स्पेशल फीचर डाल के ये प्रोजेक्ट कर दो. वहां पे ना तो L1 रहेगा, है ना, एंड दे नीड इट बैडली नाउ, क्योंकि सरकार उनको प्रोटेक्ट जरूर करेगी, बट दे ऑल्सो वांट देयर ओन प्रोटेक्शन मेजर्स. अभी एक आइडिया पे वो आदमी तो मेरे पांव पड़ गया, बोलता है सर इतना हमें खाली 3 साल के पहले पता होता तो हम लोग L1 के अलावा बाहर निकल जाते, एंड देन नाउ हम लोग अभी जो है इसमें जो है धंधा डेवलप कर लेंगे, पहले इसको कर लेंगे फिर वो L1 वाला चालू रखेंगे. तो मेरा कहना है कि कुछ ऐसी चीजें भी करनी चाहिए जिससे हमारा फर्स्ट डे से अर्निंग चालू हो जाए. ओवर फ्रॉम माय साइड. Thank you so much. And Mr. Prashant, I just want to say that there are a lot more questions, but we are going to stop here. And what I'm going to request you that can I please send you all those questions? I will write them to you and who has asked that question. And if you kind enough, please, if you can respond that via the email or WhatsApp, if would that be possible to do? Sir, let me try my level best. Definitely, I would like to answer them, but मुझे थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, उतना ही हाँ है ठीक सर. है. No, no, और और we understand. मेल आईडी भेज देना कि किस पे Okay. मुझे ये आंसर भेजना Sure. है. बाकी जरूर सर, मेरा तो ये कर्तव्य बनता है कि अगर ये तालाब में मैं मेरा एक लोटा भी दूध डाल के जाऊं सर, अकबर बिरबल का तालाब था ना जब, है ना, दूध डाल के जाऊं तो सर मेरे लिए जो है ना ये एक सौभाग्य है, मेरा ये सौभाग्य होगा. Thank you so much. Thank you so much. And Professor Suresh Roy, I'd like you to give the closing statement, please. I would just like to, on a lighter note first, and this is very interesting. सबको मजा आएगा. So one of our subcontractor is Jabil Circuit. Jabil Circuit is just like Foxconn making Apple computer iPhones in India. So Jabil is also as big as that. तो वहां पे मैं फैक्ट्री में ऑडिट करने के बाद so we went out for lunch. तो मैंने पूछ लिया who's paying for the lunch? So obviously हम लोग गए थे, I was a guest there. But no, Jabil will pay for the lunch. Okay, are you sure Jabil is paying for the lunch? From where does Jabil get his money? They get it from Cisco, obviously, because I used to work for Cisco. They get it from Cisco. So I said, so indirectly, Cisco is paying for this lunch, not you. So I didn't finish there. Think again. Is Cisco really paying for this lunch? Or वो कस्टमर जिसको हम लोग नहीं जानते, बिकॉज आफ्टर ऑल सिस्को के पास भी रेवेन्यू आता है, किसी कस्टमर के पास से आता है ना, तो हम लोग यहाँ डोंट वरी, समवन इज पेइंग एट सम लेवल, लेट्स नॉट वरी, लेट्स एंजॉय दिस लंच. बट जेबल, यू आर नॉट पेइंग फॉर दैट लंच एट लीस्ट. बट ऑन अ सीरियस, प्रशांत, थैंक यू वेरी मच. जो आपने नॉलेज जो शेयर की है हम लोग के स्टूडेंट के साथ, हम लोग के प्रोफेसर के साथ, I wish we could invite you more frequently, although you don't have time to do that. लेकिन अगर आपके पास कभी टाइम हो या आप
और रिकमेंडेशन दे जो आके ऐसे स्टूडेंट्स को एडवाइस करे, बिकॉज आफ्टर ऑल ये जो जर्नी हम लोग सिर्फ साथ कर रहे हैं, इट बिकम्स मच सिंप्लीफाइड if people like you can come and say, you can do it in this, the most easiest way is this how you do it. And students को, failure से तो डरना नहीं है, failure is a part of entrepreneurship, that we have been speaking from day one. And if we can learn from that, and जो प्रोफेसर साहब बोलते हैं, let's pivot, if वो काम नहीं किया, let's go to something else that is going to work out. Your knowledge, your experience, your expertise will always pay you in the end. And Prashant Saab, thank you so much for coming. नहीं सर, थैंक यू वेरी मच। मैं एक जोक के साथ इसको क्लोज करने की मंजूरी दे, अगर हाँ, प्लीज। आप जो बात कर रहे थे ना, मैं कई बार ऐसा होता है, नहीं एक बार नहीं कई बार, मैं जब घर पे जाता हूँ तो रात को सोने के टाइम पे हंसता हूँ। फिर वाइफ पूछती, भाई क्यों ये हंस रहे हो, मैंने क्या किया? बोला नहीं, वो दिन में सर ने वो जोक सुनाया था, वो मैं अभी समझ रहा हूँ, तो अभी उसको एंजॉय कर रहा हूँ। बट आपको अगर कभी ये गवर्नमेंट बेनिफिट के वर्चुअली बोलना है तो आप मुझे बताना, मैं सेंट्रल गवर्नमेंट जो देती है, जो इनके लिए भी इंपॉर्टेंट है, मैं 1 घंटा जरूर डिवोट करूंगा, तैयारी करके डिवोट करूंगा, सो दैट उसमें से 5-10 लोगों को भी वो अगर काम में आता है, we will do it, sir. Maybe some other time when you think fit, sir. Thank you so much. And in the end, I want to thank you so much. And kitna to all the students who actually listen to this. Every project is a good project. And our speaker today, Mr. Prashant Kumar, he took from the book holder, which he was selling for 5 rupees. He went from book holder to a Chandrayaan holder, which is like thousands of rupees. So that is a path for us which we can follow. Thank you so much, Mr. Prashant Kumar, and thank you to your company. And I truly admire and highly, I'm so thankful to Gopal Shah, who really put us into introduction. So thank you so much. Thank you. Thank you very much. Thank you, Suresh ji, Ramesh ji. बहुत बहुत आनंद आया. Thank you. All right. Okay. Yeah. Thank you. Thank you. Bye. Thank you. जिंदा रहेंगे तो मिलेंगे सर कभी. Yeah, absolutely. Okay. Thank you. I don't see him. All right. I see Dr. Anil Singh.